السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولز اردو لائبریری چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست ناول لے کر آئی ہوں، بہت ہی امیزنگ ناول ہے، اس کو لازمی پڑھیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اس کا نام ہے اب تم ہی ہو، اس کی رائٹر ہے ملکہ رفیع۔ تو اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ مس پلیز بات سنیں مس۔ شامیر اس کے پیچھے چل رہا تھا مگر نہ وہ رکی، وہ چلتی رہی۔ مس، وہ اچانک اس کے سامنے آ گیا۔ زلیش نے رک کے اس سے ایک نظر دیکھا۔ اس کی زخمی نظریں شامیر کا دل چیر گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی۔ شامیر نے بے ساختہ اس کی کلائی پکڑ لی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا، پھر ہاتھ کھینچ کے وہ غصے سے دیکھ کے چلائی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ شامیر سر جھکا گیا۔ مس، آپ کے لپس سے بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ اس سے زوال شاہ کا بھاری تھپڑ یاد آیا جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کے گال پہ پڑے تھے۔ ایک بار پھر سے درد نے اپنی لپٹ میں لے لیا۔ وہ پھنکاری، تمہیں کیا شامیر، تمہیں کیا؟ کیوں جان نہیں چھوڑتے میری؟ کیوں پیچھے پڑ گئے ہو میرے؟ بخش دو میری جان۔ وہ جانے کے لیے مڑی۔ مس، محبت کرتا ہوں میں آپ سے، شامیر جلدی سے بولا تھا۔ زلیش اچانک سے مڑی تھی، اسے اپنی خونخوار آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ شامیر نے اس بار نظریں نہیں جھکائی، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ کیسے مار سکتا ہو آپ کو؟ وہ کیسے مار سکتا ہے آپ کو؟ مس، آپ نے اس سے کچھ نہیں کہا، وہ کیسے آپ کو اتنی اذیت دے سکتا ہے؟ آپ کا خیال نہ ہوتا میں اس کی زلیش چلائی۔ بس کر دو شامیر، میرے پیچھے مت آنا اب۔ وہ اسے تنبیہ کرتے جانے کے لیے مڑی۔ وہ چلنے لگی۔ عائشہ سے اپنے لب چھوئے تو خون بہہ رہا تھا، آنسو اس کی آنکھوں میں دوبارہ سے تیرنے لگے۔ مگر وہ چلتی رہی۔ اسے موت بھی تو نہیں آتی تھی۔ مرنے کی ایک بار کوشش کی تو اس سے زاویار شاہ سے مار پڑی تھی۔ وہ جلد سے جلد اپنے روم میں پہنچنا چاہتی تھی۔ ہاسٹل پہنچ کے وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے تک گئی۔ اپنے اندر آ کے پیچھے سے دروازہ بند کر کے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ رونے کی وجہ سے اس کا کاجل بہہ چکا تھا۔ اس کے نازک سے گال پر ابھی تک انگلیوں کے نشان تھے۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ گردن سے تھوڑا نیچے نظر پڑی تو وہاں لگے زخم کو دیکھتی رہی جو کل رات اسے لگے تھے جب زاور شاہ کو خود سے دور کرنے کی کوشش میں لگے تھے۔ زاور شاہ نے نشے میں اس کی گردن دبوچ لی تھی۔ وہ بہت مشکل سے خود کی عزت بچا کے بھاگی تھی اور آج اس نے اس کا بدلہ ایسے لیا کہ اسے اپنے اسٹوڈنٹ شامیر کے سامنے تھپڑ مار دیا۔ شامیر اسے مارنے کے ارادے سے آگے بڑھا تو زلیش نے اسے روک دیا تھا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں مس۔ شامیر کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے سسکی لی تھی۔ تمہاری یہ جو سانسیں چل رہی ہیں نا، جب یہ رکیں گی تب تمہیں مجھ سے نجات ملے گی۔ اس کے کانوں میں زوال شاہ کی آواز گونجی۔ تم کیا چاہتی ہو، موت کو یا زوال شاہ کو؟ وہ جلتی سگریٹ اس کی ہتھیلی پر رکھتے بولا۔ وہ سسکی تھی۔ زوال شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف دیکھ کے اسے سکون مل رہا تھا۔ بولا زلیش، مجھے درد ہو رہا ہے۔ بولا زلیش، موت یا میں؟ وہ مطمئن انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا آپ۔ وہ سسکی تھی۔ تب زوال شاہ سگریٹ ہٹا کے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ہاتھ پکڑ کر رو بھی نہیں پا رہی تھی۔ رونے سے مجھے نفرت ہے، رونا نہیں، بس میں تمہاری ان آنکھوں میں خوف دیکھنا چاہتا ہوں ہمیشہ۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھتی وہ یکدم سے چیخی تھی۔ خود کو آئینے میں دیکھ کر وہ چیخ رہی تھی، ماں کیوں مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں گئی؟ کیوں اس ظالم دنیا میں چھوڑ دیا مجھے؟ کیوں؟ وہ رونے لگی۔ کالج پہنچتے ہی وہ جلدی سے کلاس میں گیا لیکن ابھی تک زلیش نہیں آئی تھی۔ وہ سر جھکائے اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ کل اس نے پہلی دفعہ اپنے احساسات کو زبان دی تھی۔ مارننگ میم، سب نے ایک ساتھ کہا۔ مارننگ، سٹ ڈاؤن آل آف یو۔ سب بیٹھ گئے تو اس کی نظر شامیر پر پڑی جو کونی ٹیبل پہ ٹکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ نظر انداز کر کے سب سے مل کر لیکچر سے متعلق سوال کرنے لگی۔ شامیر اس کے چہرے کو نظروں کے خسار میں لیے مسکرا رہا تھا۔ زلیش کی نظر اس پہ پڑی لیکن اسے اپنی طرف تکتا پا کے اسے نظریں پھیر لی۔ وہ جتنا کوشش کر رہی تھی کہ شامیر کے ساتھ نارمل رہے مگر کل کے بعد وہ نارمل نہیں ہو پا رہی تھی اور شامیر اس کی اس کیفیت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ زلیش اس سے 5 سال بڑی تھی۔ پہلی بار اسے وہ عام سی لگی تھی لیکن ایک دن اچانک اسے احساس ہوا، اسے لگا بس اٹریکشن ہے، کچھ دن بعد اتر جائے گی دل سے، لیکن وہ ہر روز نئے سرے سے اس کے لیے اپنے دل میں تڑپ محسوس کرتا اور اسے محبت ہو گئی زلیش سے۔ وہ خیالوں سے نکل کر سامنے دیکھ رہا تھا جب زلیش اس کے سامنے
बिल्कुल सामने खड़ी से नोट्स मांग रही थी। वो बुलखला के देखने लगा। जलीश के लबों पर मुस्कुराहट ठहर गई। इसकी बुलखलाहट पे वो शर्मिंदा सा अब जलीश को देख रहा था। क्लास ऑफ होने पे सब स्टूडेंट जाने लगे, मगर शामिर वही बैठा रहा। इसकी नज़रें जलीश पे थी, जो कुछ पेपर्स देख रही थी वहीं बैठ के। इसके चेहरे को गौर से देखता शामिर उठ के इसके पास आया। मिस, जलीश ने सर उठाकर इसे देखा। कैसी हैं अब आप? ठीक हूँ शामिर, तुम कैसे हो? वो मुस्कुरा रही थी। कल के वाक़े का कुछ भी नहीं था। अब इसकी आंखों इसके चेहरे पे वो मुस्कुरा दिया। मैं ठीक हूँ मिस। वो फिर से पेपर्स में बिजी हो गई। शामिर देर तक इसके झुके सर को देखता रहा, फिर अपनी सीट पे आके उसने अपना बैग उठाया। जलीश के झुके सर को देखता हुआ बाहर निकल गया। जलीश ने सर उठा के देखा, वो जा चुका था। वो देर तक दरवाजे को तकती रही। वो अपनी धुन में गेट से निकली ही थी जब जावर शाह इसके सामने आ गया। वो रुक के खौफजदा नज़रों से इसे देखने लगी। इसकी आंखों में खौफ देख के इसे सुकून मिल जैसे इसे इसकी आंखों में देख के इसे सुकून मिल रहा था। वो बुक के लिए इसके सामने था सरप्राइज। जलीश मुंह मोड़ गई। वो नाराज़गी कैसे ख़त्म होगी अब? वो सर झुका के इसका चेहरा देखते बोला था। अपनी उंगली की पूर से इसकी गर्दन छूने लगा। वो बदक के पीछे हटी और इसे देखने लगी। जवार शाह का कहका बेसाख्ता था। जलीश इधर उधर देखने लगी। इसका हाथ पकड़ के वो कहने लगा, चलें कहाँ? सवाली नजरें इस पे थी तो जवार शाह की गिरफ्त इसके हाथ पे सख्त हुई। इसकी सिसकी सी निकली। जवार शाह मुस्कुराता हुआ इसे देख रहा था। चल चल दिया करो मेरे साथ, मोहब्बत से ये मत पूछा करो कहाँ मुझसे ये मत पूछा करो कहाँ। वो खौफजदा सी इसे देख रही थी। जवार शाह इससे लिए कार में बैठ गया। शामिर दूर खड़ा इन्हें देख रहा था। एक साया सा इसके चेहरे पे गुजरा था। एग्ज़ाम की वजह से इसके काफ़ी बिजी दिन गुजर रहे थे। शामिर का लास्ट ईयर चल रहा था। इसके बाद इसे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी थी और वो जलीश से हमेशा के लिए दूर हो जाता। फिर भी कभी रोज़ जलीश को देख ना पाता है, इससे बात ना कर पाता है। उदासी इसके चेहरे से आया थी, जिसे जलीश भी महसूस कर चुकी थी, मगर वो खामोश थी और यूं खामोश रहना ही ठीक था दोनों के लिए, वरना तूफान आने में कौन सी देर लगती है मिस। आज वो हिम्मत करके आ ही गया था जी। जलीश इसे देखने लगी। शामिर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर बंद कर दिया और अपना सर खुजाने लगा। जलीश इसे गौर से देख रही थी। आई विल मिस यू मिस, वो अचानक इसकी आंखों में देखता बोला। जलीश आम से अंदाज में मुस्कुराई। आई विल मिस यू आई विल मिस यू टू। शामिर बेचारगी से देखने लगा। मिस जी नहीं सकूंगा आपके बिना। जलीश धीरे से मुस्कुराई। कोई किसी के लिए नहीं मरता शामिर, ये सब बातें हैं मिस, मेरे अल्फाज मेरी फीलिंग्स हैं, आप इसे महज बातें बोल रही हैं। वो इसके पास बैठ गया। क्या ये नहीं हो सकता? वो सर झुका गया। जब इसे देखा तो आंखों में बेबसी थी। बहुत बेबस हूँ मैं आपको खो चुका हूँ? यहाँ कोई उम्मीद कहीं बाकी है? मैं तुम्हारी थी ही कब शामिर, वो धीरे से बोली। शामिर देर तक इसे देखता रहा, फिर फिर वो कुछ नहीं बोला। चलता हूँ मिस, वो जाने के लिए उठा। अल्लाह हाफिज़, वो कहकर यहाँ से जा चुका था। जलीश की आंखों ने दूर तक इसका ताक़ुब किया। जावर शाह ने इसे डिनर पर इनवाइट किया। वो ब्लैक ड्रेस में तैयार खड़ी खुद को आईने में देख रही थी। इसका गोरा रंग निखर गया था इस ब्लैक ड्रेस में। स्मोकी मेकअप के साथ इसने लाइट पिंक लिप ग्लॉस लगाया था। भोजक दिल के साथ वो कमरे से बाहर निकली। जावर शाह नीचे इसका मुंतज़िर था। छोटे छोटे कदम उठाती वो नीचे उतर के इसके पास आई। जावर शाह इसको बहकी आंखों से देखता रहा। यू आर लुकिंग ग्रोजियस। जलीश ने इसे खामोशी से देखा। वो दोनों एक ऑफिशियल पार्टी में जा रहे थे। जावर शाह इसे लिए बाहर निकला। कुछ लड़कियां तो हसरत से इन दोनों को देख रही थी, रक्श कर रही थी कि लेकिन कोई जलीश से भी पूछ लेता कि वो किस हाल में है। पार्टी में सबके साथ होते हुए भी वो खुद को अकेला महसूस कर रही थी। खामोश खड़ी सबको वो देख रही थी। जब पीछे से किसी ने इसके स्लीवलेस बाजू को बहके अंदाज में अपनी उंगली से छुआ। वो घबरा कर मुड़ी तो जवार शाह था। इसकी बहकी निगाहें जलीश के चेहरे पर टिकी थी। आप? जावर शाह इसका हाथ पकड़े इसे दूसरी साइड पर ले गया जहाँ कोई नहीं था। इसे दीवार से लगा के इसकी गर्दन को अपनी उंगली से छूने लगा। जलीश इससे खौफजदा आंखों से देख रही थी। मुझे तुम्हारी आंखों में खौफ देखकर सुकून मिलता है, जावर शाह इसकी आंखों में देखता हुआ बोला। वो घबरा गई। क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं, तुम्हारी खूबसूरती को सराह रहा हूँ। वो इसकी
दोनों हाथों को दीवार से लगाकर इस पे झुका। इसके मुंह से बहुत गंदी बू आ रही थी। जलीश को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। इस वक्त कुछ शोर सा हुआ। वो जल्दी से जलीश को छोड़ के इसकी तरफ चला गया। जलीश का वजूद लर्ज रहा था। जलीश कॉलेज में थी जब इसके वालिदैन इंतकाल कर चुके थे। जलीश को अजलान शाह ने अपनी जिम्मेदारी समझ के इसके सरपरस्ती की और इसे पढ़ाया लिखाया। इन्हें अपने बेटे की वजह से जलीश का हॉस्टल में रहना बेहतर लगा, लेकिन जावर शाह ने वहाँ भी इसका पीछा नहीं छोड़ा। वो वहाँ भी आता जाता इसे तंग करने वो वहाँ भी आ जाते थे तंग करने, और जलीश को इसने सख्ती से मना किया था कि इस बात का अजलान शाह को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो इसका हुलिया बिगाड़ देगा। वो चुपसदा इसका हर जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। मुझे दर्द हो रहा है, वो खौफजदा आवाज़ में कह रही थी, मगर वो कहाँ सुन रहा था। वो इस पे थप्पड़ों की बारिश करके अब इसके बाल खींच रहा था। वो दर्द से चीखी थी, चीखो और ज़ोर से चीखो। तुम पार्टी से गई क्यों? मुझसे पूछे बिना वहाँ से निकली क्यों? उसकी आंखों में आंसू जमा होने लगे। रोना नहीं, आंखें नोच लूँगा। डर के इसने अपनी आंखें बंद कर दी। इसने सिसकी सी ली। जवार शाह ने इसे बालों से खींच के धिक्का दे के दूर गिराया था। जोर से इसका सर दीवार से जा लगा। वो कराह कर रह गई। इसकी पेशानी से खून बहने लगा। जवार शाह कमरे में टहल रहा था। कुछ देर बाद ने जलीश के बेजान वजूद को छुआ। जलीश डर के इसे देखने लगी। इसकी पेशानी और चेहरे पर खून था। जवार शाह घबरा के इसके पास बैठ गया। जलीश जानम, ये जलीश के रुके आंसू बहने लगे। वो इसे लिए बेड पे आगे इसके बाल हटाने लगा और जख्म का मुआयना करने लगा। वो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आया और इसका जख्म साफ करने लगा। जलीश के मुंह से सी निकली। वो इसे देखने लगा। ज़्यादा दर्द हो रहा है? जलीश कुछ ना बोली, बस खौफजदा नज़रों से इसे देख रही थी, जिसका कुछ पता नहीं था कि कब क्या कर दे। घर में जलीश को देखकर अजलान शाह को खुशगवार हैरत हुई। अरे, मेरी बेटी आई है। उन्होंने प्यार से इसके सर पे हाथ फेरा और मुस्कुराई। कैसे हैं आप अंकल? अपनी बेटी को देख के मैं ठीक हो गया। ये क्या हालत बनाई है तुमने? पेशानी पे क्या हुआ है? हॉस्टल में सीढ़ियों से गिर गई थी। जलीश ने नजरें झुकाकर कहा। वो परेशान हो गए, डॉक्टर के पास गई थी। जी जी अंकल। वो अपने बाल सामने लाते बोली। आप बैठे ना, मेरा कहाँ दिल करता मेरी बेटी हॉस्टल में रहे, लेकिन मैं मजबूर हूँ जवार शाह की वजह से। इसकी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे, मैं कभी बर्दाश्त कर सकता। एक पल को इसका दिल चाहा कि सब बता दे इन्हें, लेकिन चुप रही। तुम ठीक तो हो ना बेटा? इधर कोई परेशानी तो नहीं? जलीशी ने देखकर थोड़ा मुस्कुराई। नहीं अंकल, मैं खुश हूँ इधर, और सर झुका गई। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक साल और गुजर गया। यूनिवर्सिटी यूं ही जवार शाह के जुल्म सहते हुए जाए नमाज बिछाए वो आधी रात को अपने अल्लाह के सामने झुकी दुआ मांग रही थी, रो रही थी, अपने लिए सुकून मांग रही थी, अच्छी ज़िंदगी की दुआ मांग रही थी। मुझे निजात दिला दें अल्लाह, इस जालिम इंसान से मुझे निजात दिला दें। आपकी ये बंदी ऐसा कौन सा गुनाह कर चुकी है कि ये सज़ा मिल रही है, या फिर ये आजमाइश है क्या? मेरी मदद फरमा मेरे मालिक, मेरी मदद फरमा, मुझे बख्श दे मेरे मौला, मेरी मदद फरमा। वो जाए नमाज से उठी। जाए नमाज तय करके इसने अपनी जगह पर रखा और ख़ुद को आईने के सामने खड़ी होकर देखने लगी। इसने अपनी चादर हटाई। इसकी मुर्दा आंखें इसके इसके गर्दन पर रस्सी के निशान थे। इसने अपनी गर्दन को छुआ। इसे वो लम्हा याद आया जब जवार शाह इसकी गर्दन में रस्सी डाले खींच रहा था। इसे अपनी सांसें निकलती हुई महसूस हो रही थी। इसकी आंखें बाहर को उबल पड़ी थी, और जवार शाह ने शायद रहम करके इसे छोड़ दिया था। इसे ज़ोर से धक्का दे के नीचे गिरा दिया था, और वो रुक रुक के सांस लेने की कोशिश करती रही। इसकी आंख से आंसू फिसला था। इसकी नज़र अपने बाजू पर पड़ी, जहाँ जवार शाह ने अपनी बेल्ट से मार मार के इसकी कमर और बाजू पर बेल्ट के निशान छोड़ दिए थे। इसे घुटन हुई। वो खिड़की के पास आई, लेकिन हॉस्टल के नीचे जवार शाह के आदमियों को देखा तो वापस अपनी जगह आके बैठ गई थी। इसे और तो कुछ करना नहीं था सिवाय रोने के। वो रोने लगी, लेकिन इसे चुप कराने वाला कोई नहीं था। तुम्हारी आंखें बनी ही इसलिए हैं कि इसमें हर लम्हा खौफ देखूं। क्यों करते हैं आप ऐसा मेरे साथ? जवार शाह ने इसके होंठ दबोचे थे। मेरे सामने जबान चलाओगी? अब वो दर्द से चीख भी नहीं सकती थी। इसके मुंह पे जवार शाह का हाथ था। वो लम्हा याद करके वो सिसक पड़ी। क्यों क्यों मेरे साथ ही क्यों है अल्लाह? वो कितने इम्तिहान बाकी हैं। मौत भी तो नहीं आती मुझे। मेरे अल्लाह मौत ही दे दे। वो रोए जा रही थी। जवार शाह का बहका वजूद इसके ऊपर था। वो चिल्ला रही थी। इसके मुंह से आती बदबू की वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रही थी।
पूरी कुव्वत जमा करके इसने जवार शाह को धिक्का दे के खुद से दूर किया। वो नशे में था, लड़खड़ा के गिर गया। इसके कपड़े जगह जगह से फट गए थे। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और बाहर जाने के लिए वो लपकी ही थी जब जवार शाह ने इसका हाथ पकड़ के इसे अपने तरफ करके इसे जोर से थप्पड़ मार दिया। बज़ात मुझे धक्का दोगी, मैं तुम्हारा हश्र कर दूंगा। वो हवस भरी नजरों से इसे देखने लगा। जलीश का पूरा वजूद कांप उठा। वो कैसे अपनी इज्जत बचाती इसे देखो, हाथ नहीं लगाना मुझे। वो जोर से कहका लगा के हंसा था, फिर इसे गहरी नजरों से देखने लगा। इसे अपने करीब खींचकर कहने लगा, ये लो लगा लिया हाथ, क्या कर लोगे जाने मन। वो बहक रहा था। जलीश खुद को इससे दूर करने लगी। जलीश ने एक बार फिर से पूरी कुव्वत से इसे धिक्का देना चाहा, मगर वो नाकाम रही। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरे मालिक मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। आंखें बंद करके वो दुआ करने लगी और पूरी कुव्वत से जवार शाह को धिक्का दिया। वो लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरा था। इसका सर टेबल से टकराया। वो कुछ भी देखे बिना कमरे से निकली और पीछे से दरवाज़ा बंद करके भागती हुई बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन सामने से जवार शाह के आदमी को देखकर वो रुक गई थी और खौफजदा नजरों से उसे देखने लगी। वो इसके फटे कपड़ों को देखने लगा। जलीश खुद में सिमट सी गई, लेकिन अगले ही लम्हे इसने अपनी नजरें झुका दी और एहतराम से साइड पर खड़ा हो गया। जलीश इसे हैरत और खौफ से देखने लगी। जलीश बीबी जाइए आप, अल्लाह आपकी इज्जत महफूज रखे। वो मनमोह निगाहों से इसे देखने लगी, फिर पीछे इस कमरे की तरफ देखा, लेकिन जवार शाह बाहर नहीं निकला था। शायद बेहोश हो गया था। इसने जलीश को यहाँ से निकलने में मदद की और इसे बंगले से बाहर ले जाके अपनी चादर इसे ओढ़ी और सर झुकाए एहतराम से बोला, मैं भी माँ बहन वाला हूँ जलीश बीबी, आप अब यहाँ से जितना दूर जा सकती हैं चली जाएं। अल्लाह आपकी इज्जत की हिफाजत फरमाए, जल्दी जाएं, शुक्रिया। वो मनमोह नजरों से देखने लगी, फिर मुंह मोड़ के वो भागने लगी। घने दरख्तों के बीच भागते भागते वो थक गई, लेकिन इसे भागना था, इससे बहुत दूर जाना था, अपनी इज्जत बचानी थी। वो भागती रही यहाँ तक कि इसे रोड नजर आई। वो रोड की तरफ आई, कोई गाड़ी इसे नजर आती आई। वो अचानक से सामने आई गाड़ी के। वो शख्स मुश्किल ब्रेक लगाते इस अफ्ताब को देखने लगा। गाड़ी की तेज लाइट्स की रोशनी में इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। गाड़ी जैसे ही रुकी, वो जल्दी से पिछली साइड का दरवाजा खोल के अंदर बैठ गई। मैं मेरी मदद कर दें प्लीज़, मुझे बचा लें प्लीज़, वो मार देंगे मुझे, गाड़ी चलाएं प्लीज़। जानी पहचानी आवाज़ शामिर के कानों से टकराई। इसने गौर से पीछे बैठे वजूद को देखा। बाल बिखरे हुए, चेहरे पर जगह जगह नील के निशान। नीम जान सी वो लड़की थी। इसका दिल धड़का था। मिस, वो बेयकीनी से इसे देख रहा था। जलीश ने चौंक कर इसे देखा। इसकी खौफजदा आंखों में अब इत्मीनान हलकोरे ले रहा था। शामिर इसके लब मुस्कुराए थे और बेहोश हो गई थी। फ्रंट सीट पर बैठी खातून ने पहले जलीश के बेजान वजूद को, फिर शामिर को देखा था। शामिर ने जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। घर के आगे गाड़ी रोके इसने पहले शर्मीन को देखा, जो इसे ही देख रही थी, फिर जलीश के बेजान वजूद को देखा। मामा आप दरवाज़ा खोलिए, घर का मैं मिस को ले आता हूँ। शर्मीन सर हिला के बाहर निकली तो शामिर बाहर निकल के जलीश की साइड आया और दरवाज़ा खोल के इसे अपनी मजबूत बाजू में लेके घर की तरफ बढ़ा। इसे कमरे में ले जाकर बेड पर लटा के सीधा हुआ तो इसकी नज़र चादर से झलकती जलीश के फटे कपड़ों पर पड़ी। इसका जिस्म जगह जगह से नुमाया हो रहा था। वो चौंक के अपनी माँ को देखने लगा। मामा, इसके लहजे में दुख साफ बो रहा था। इसे अंदाज़ा था कि कौन हो सकता है। वो अब कॉलेज में पढ़ाता कोई स्टूडेंट वो अब कॉलेज में पढ़ता कोई स्टूडेंट नहीं था। वो अब एक मर्द बन चुका था। इसकी पुरकशिश आंखों में दर्द देख के शर्मीन आगे बढ़ी। जलीश पे कंबल डाल के वो सीधी हुई। डॉक्टर को कॉल करो करके वो नंबर मिलाने लगा। डॉक्टर इसे इंजेक्शन लगा के कुछ दवाइयाँ लिख के जा चुका था। वो अभी तक बेहोश थी। शामिर ने इसके चेहरे को देखा। इसके होंठ फटे हुए थे जो अब जख्म बन चुका था। इसकी आंखों के पास गहरे नील के निशान थे। इसके गालों पे उंगलियों के निशान थे। इसकी गर्दन पे गहरे निशान देख के वो चौंक ही पड़ा। इसने दर्द से आंखें मींच ली। मिस, कैसे बर्दाश्त करती रही आप ये सब, कैसे? होश में आते ही वो भपरे शेर की तरह सब पर बरस रहा था। कैसे चलेगी वो यहाँ से? तुम में से किसी ने भी इसे नहीं देखा? एक लड़की तुम लोगों की आंखों के सामने से गुजर के चली जाती है और तुम लोग उंगली मुंह में दिए बैठे रहे। सब सर झुकाए खड़े थे और जवार शाह इन सब को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। दफा हो जो सब, वो ढूंढ के लाओ इसे मेरे पास, इतना दूर नहीं गई होगी वो गुस्से से धाड़ता बोला। सब जल्दी से बाहर निकल गए। जवार शाह भींचता कमरे के चक्कर काटने लगा। जलीश, कहाँ तक भागोगी? आखिर मेरे पास ही आओगी ना? वो जहर खुंदा अंदाज में मुस्कुराया। नींद से वो चीख के जागी थी और अब खौफजदा नजरों से इधर उधर देखती चीखी जा रही थी। शामिर आगे बढ़ के उसे
संभाल सके, मगर वो चीखे जा रही थी, नहीं नहीं मुझे छोड़ दो प्लीज़, मत मारो मुझे, नहीं अब नहीं होगा ऐसा, मिस मिस मैं शामिर, मिस प्लीज़ होश करें। जरीश पहले से खौफजदा नज़रों से इसे देखने लगी, फिर शनासाई की रमक आंखों आई इन आंखों में। शामिर जी मिस, मैं शामिर, आप सेफ हैं इधर, जस्ट रिलैक्स। वो मार देगा मुझे, बहुत मारेगा मुझे, प्लीज़ मुझे बचा लो। मेरा कोई नहीं है, प्लीज़ शामिर मुझे बचा लो, बचाओगे ना मुझे? वो खौफजदा सी सवाली नज़रों से देखने लगी। मुझे इसके हवाले तो नहीं करोगे ना? शामिर को बहुत दुख हो रहा था जलीश को इस हाल में देख के। इसने नफ़ी में सर हिलाया, इसकी नज़र जलीश के बाजुओं पर पड़ी जहाँ गहरे नील के निशान थे। वो दुख की कैफियत में आ गया। मिस, ये जलीश ने नजरें चुराने लगी, क्या बताती इसे? वो आपको मारता था? दुखी लहजे में कहता इसके झुके सर को देखने लगा। वो यकदम से सिसक पड़ी, बहुत जालिम है वो, मुझे बहुत दर्द होता था, बहुत दर्द। वो रो रही थी। शामीर ने साथ खड़ी शर्मीन को देखा। शर्मीन ने पास बैठ के इसे गले लगाया। अब तुम्हें कोई नहीं मार सकता। वो बिलक बिलक के रो रही थी। शामिर तासुस से इसे देख रहा था। कितने दुख दुख थे जलीश के, और इसे कुछ इल्म ही नहीं था। इल्म होता भी कैसे? कॉलेज के लास्ट डे पर वो शामिर को बोल चुकी थी साफ लफ्ज़ों में कि अब इसका ख्याल दिल से निकाल दे, और शामिर ये सोच के कि जलीश खुश रहे वो साइड हो गया था। कैसे नहीं मिली वो लड़की, किधर गई? जान से मार दूंगा तुम सबको मैं। वो भपरे शेर की तरह इधर उधर चल रहा था। इसके गुस्से का सबको इल्म था। सब सर झुकाए खड़े थे। पुलिस में रिपोर्ट कर दे सरकार, किसी ने पूछा था? किसी ने पूछा नहीं, वो धाड़ा था, इसे मैं खुद ढूंढ लूंगा और इसे वो सजा दूंगा कि खुद याद रखेगी हमेशा के लिए। इसकी आंखों में खून उतर आया था। जलीश भाग लो जितना भागना है, अब मैं ढूंढने के लिए तुम्हें वो सजा दूंगा जो कभी नहीं दी मैंने तुम्हें। इसके अंदर एक तूफान बरपा था। जलीश इसके हाथ से कैसे निकल गई, ये ख्याल इसे जहर की तरह झप रहा था। आखिर कैसे एक आम सी नाजुक सी लड़की यूं बंगले से भाग जाए और किसी को खबर भी ना हो? आसपास का पूरा इलाका जंगलों से भरा हुआ था। इसे लगा था मिल जाएगी कहीं कहीं, लेकिन लाख ढूंढने पे भी इसे वो कहीं नहीं मिली। इसे पहनने के लिए एक हल्का सा सूट दिया गया। इसे पहनने के लिए आहाना का सूट दिया गया। आहाना शामिर की छोटी बहन थी जो मेडिकल स्टूडेंट थी। वो भी जलीश के जख्मों पर मरहम लगा रही थी। जलीश ने दर्द से आंखें बंद कर ली। आहाना दुख से इसके जख्मों को देख रही थी। इसकी पीठ और कमर पर मरहम लगाती इसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कहा कुछ नहीं। इसका पूरा जिस्म जख्मों से और नीलों से भरा हुआ था। इसे जलीश की हालत देख के अफसोस हो रहा था। जरीश के चेहरे पर फैले दुख, करब और दर्द और खौफ इसके अंदर का हाल बता रहे थे। इसे देखते हुए आना बोली, आप यहाँ सेफ हो जलीश, बेफिक्र रहिए, आप वो आपको नहीं ढूंढ सकता। जलीश की आंखों में फिर भी खौफ का तासुर था, ऐसा खौफ जिससे शायद मिटने में बरसों लग जाए। जवार शाह का खौफ, इसके अल्फाज, इसकी अजियत भरे लम्स। आहाना को कॉलेज जाना था। वो इसे लटा के तैयार होने चलेगी। बाहर बाहर निकल के वो शर्मीन और शामिर के पास आई। इसके जिस्म का एक हिस्सा भी ठीक नहीं है, जख्म और नील के निशान से भरी हुई है इसकी बॉडी। शामिर को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। शर्मीन ने ढल के दिल पे हाथ रखा। कौन जालिम था ये? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो हमारी गाड़ी से टकरा गई। मुझे लगता इसे अंदरूनी इंजरीज भी आई होंगी। इसका मुकम्मल मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए। आहना की बात पे शामी ने इसे देखा, मगर कहा कुछ नहीं। कहता भी क्या? जलीश को इस हालत में देख के वो किंग हो गया था। इसकी आंखों में हम वक्त खौफ नजर आता इसे। इसका चेहरा ज़्यादा मार खाने से बिगड़ गया था और इसका पूरा जिस्म जख्मी था। सबसे बड़ी बात, इसकी रूह जख्मी थी। आंसू इसकी आंखों में आ गए, जैसे जिसे छुपाने के लिए वो वहाँ से उठ के चला गया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। आहना की बात पर वो डर और खौफ के कैफियत में आ गई थी। इसने शामिर को खौफजदा नज़रों से देखा था। शामिर लब काटता इसके पास बैठ गया। मिस, अब आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैं, ये मेरा वादा है आपसे, बट प्लीज़ ये सब ज़रूरी है, आपका ट्रीटमेंट अच्छे से होना चाहिए। आना मेडिकल स्टूडेंट है और हम आपको वहाँ थोड़ी रखेंगे, हम आपका चेकअप करवा के वापस घर आ जाएंगे। जलीश ने बारी बारी आना और शर्मीन को देखा जो तशवीश से इसे देख रही थी। फिर शामिर को देख के बोली, अगर वो आ गया वहाँ तो? इसके लहजे में डर था। वो नहीं आएगा, आपको किस्मत ने दोबारा मुझसे मिलाया है, मैं अब आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मिस शामिर मजबूर लहजे में बोलता इसे देख रहा था। जलीश ने इसकी आंखों का यकीन देखा तो दिल को थोड़ा तसल्ली हुई। जलीश को वो 2 साल पहले का शामिर नहीं लगा, बल्कि वो अब मैच्योर मर्द के रूप में इसके सामने था।
ठीक है ना जलीश, आना ने पूछा तो उसने सर इस बात में सर हिला दिया और शामिर और साथ में शामिर को देखा जो इसे ही देख रहा था। जलीश के देखने पर मुस्कुरा पड़ा। चेकअप के बाद आना और शामिर जलीश को लेकर बाहर निकले। भाई आप जलीश को लेकर घर जाएं, मैं रिपोर्ट्स लेकर आ जाऊंगी। आना के कहने पर शामिर ने सरस बात में हलाया और जलीश पर नजर डाली और वो छोटे छोटे कदम उठाती इसके साथ चलने लगी। कॉरिडोर से गुजरते जलीश को सामने रश नजर आया तो इसने बेसाख्ता शामिर का बाजू पकड़ लिया, उसके पीछे होने लगी। शामिर ने चूंकि इसकी ये हरकत देखी, जलीश आप ठीक है, वो सर मोड़कर इसे देखने लगा तो वो इसकी तरफ खौफ से देखती और भी अपनी गिरफ्त इसके बाजू पे सख्त कर दी। शामिर ने गौर से रश को देखा, वहां इसे कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आया जो इन्हें देख रहा हो, जिसे देखकर जलीश खौफजदा हो रही हो। शामिर इसे लिए हॉस्पिटल के हाथे से बाहर निकला, गाड़ी का दरवाज़ा खोल के इसे बैठाया और दरवाज़ा बंद करके खुद दूसरी साइड से आके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जलीश सर नीचे किए अपना चेहरा छुपा रही थी। शामिर ने गौर से इसे देखा, इसे जलीश की हर हरकत पे दुख हो रहा था। इसने गाड़ी ड्राइविंग वे पे डाल दी। पूरा इलाका छान मारा लेकिन इसे जलीश कहीं नहीं मिली। कहाँ जा सकती है वो, इन घने जंगलों से वो कैसे निकल सकती इसकी इस एक रात में। और अगर रोड पे भी पहुंच जाए तो वो कैसे वहां से कोई गाड़ी भी मिल सकती थी। वो तो जलीश की किस्मत अच्छी थी जो शर्मीन अपने गांव से वापस शहर जा रही थी तो जलीश इनकी गाड़ी से टकरा गई। गमो गुस्से से जवार शाह का बुरा हाल था, आखिर कहाँ गई ये जलीश, किधर किधर घुमाएगी मुझे ये लड़की। इसे एक पल चैन नहीं आ रहा था। सिगरेट के धुएं उड़ाता वो जो जो ही जलीश के बारे में ही सोचे जा रहा था। जलीश सलार, एक बार, बस एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ, फिर देखता हूँ कि कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे। कुत्तों जैसी हालत कर दूंगा, तुम्हारी मौत मांगोगी। वो गुस्से से पागल हो रहा था। शाम में ही वो बंगले से शहर वाले बंगले में आया था और अब अपने कमरे में गुस्से से पागल हो रहा था। सिगरेट से इसका पूरा कमरा धुआं से भर गया था और इस धुएं में जलीश की परछाई ढूंढ रहा था। कैसा लगा सरप्राइज, ने जलीश को ऊंची बिल्डिंग से धक्का देते हुए दोबारा अपनी तरफ खींचा। वो एकदम से चीखी थी। जवार शाह इसकी आंखों में खौफ देखता हुआ कहका लगाने लगा, मजे का था ना। इसका पूरा वजूद लर्ज रहा था। बोलो मजे का था ना, वो ऊंची आवाज में बोला। जलीश घबराई हुई इसे देखने लगी। हाँ हाँ, वो दोबारा हंसने लगा। वाना ट्राई अगेन। जलीश इसे इल्तिजाइया नजरों से देखने लगी। नहीं नहीं प्लीज, चलो ठीक है, नहीं करते ट्राई। वो इसे बाहों में लिए मुंह मोड़ के जाने लगा। जलीश का वजूद इसके बाजुओं में कांप रहा था। जलीश कंधा हिलाने पर जलीश खौफ से ऊपर देखने लगी जहां शर्मीन खड़ी इसे परेशानी से देख रही थी। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, वो सर झुका के अपनी उंगलियां तेजी से मरोड़ने लगी। शर्मीन ने गौर से इसकी ये हरकत देखी। जब उंगलियां मरोड़ने में ज्यादा तेजी आई तो शर्मीन ने इसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। जलीश चूम गई और शर्मीन को देखने लगी। इसके हाथ शर्मीन के हाथों में लर्ज रहे थे। मैं सोच रही थी आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाया जाए, क्या पसंद तुम्हें? शर्मीन इसे नरमी से पूछने लगी लेकिन इसकी आंखों में खौफ के साए लहराए। इसके कानों में जवार शाह की आवाज़ गूंजने लगी, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें आज तुम्हारी पसंद का खाना बना के अपने हाथों से खिलाऊं। और साथ ही इसकी उंगलियां मरोड़ दी। वो दर्द से चीखी थी और जवार शाह हंस पड़ा था। जलीश, वो एकदम से होश में आई थी। जी बेटा, क्या हुआ? कहाँ खो गई थी? क्या खाओगी? मैं बना दूँ? कुछ नहीं आंटी, भूख नहीं है अभी। वो अपने खौफ पे थोड़ा काबू पाते हुए सर झुका के बोली, ये क्या बात हुई अब? मुझे तो इस उम्र में भी जल्दी जल्दी भूख लग जाती थी। जलीश मुस्कुरा दी इनकी बात पे। शामिर और अहाना को नरगिसी कोफ्ते बहुत पसंद है, तुम्हें भी पसंद है? शर्मीन की बात पर जलीश ने सर इस बात में हिलाया तो शर्मीन मुस्कुरा के उठने लगी। चलो वही बनाते हैं, हेल्प करोगी मेरे साथ? तो वो इसे फजूल सोचने से बचाने के लिए बोली तो जलीश मुस्कुरा पड़ी। जी बिल्कुल। वो साथ ही उठ के किचन में चली गई। दुआओं के जरिए सर वो अब काफ़ी बेहतर हो रही थी। जख्म भर रहे थे इसके, लेकिन इसकी रूह पे जो जख्म लगे थे इसे भरने में शायद अभी बहुत टाइम लगना था। सर्दियों की आमदाम थी। रात के वक्त ठंडी हवाएं खुशगवार एहसास बख्शती थी। वो बालकोनी में बैठी थी, ठंडी हवा के झोंके इसके चेहरे को छू रहे थे जब शामिर इसके पास आके बैठ गया। सोई नहीं आप? जलीश ने मुड़कर से देखा। तुम भी तो नहीं सोए? शामिर मुस्कुरा पड़ा। आप तो यहाँ भी टीचर बनी रहती हैं। जलीश को हंसी आ गई, फिर अपने हाथों को देखते हुए कहने लगी, आंटी और आना बहुत अच्छी हैं, बहुत ख्याल रख रही हैं मेरा। शामिर ने कोई जवाब नहीं दिया।
वो इसका चेहरा देखने लगा। इसका चेहरा अब साफ हो चुका था। क्यों बर्दाश्त करती नहीं आप इसका हर जुल्म? जरलीश के चेहरे का रंग बदला था। एक पल को फिर नॉर्मल हो गई। एक साया सा गुजरा था इसके चेहरे पे। वो अपने हाथों की हथेलियों को देखने लगी। जिन लड़कियों के सरों पर माँ बाप का साया ना हो, इन्हें ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है। लोग इस पे अपना हक जताने लगते हैं। इसे जर खरीद गुलाम बनाकर रख देते हैं। अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन वो इसी पे निकाल देते हैं। पता क्यों? वो एक पल को रुकी, फिर बोली, क्योंकि इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। जलीश इसे देखने लगी, जिसकी आंखों में दर्द हलकोरे ले रहा था। मेरी हालत तो जर खरीद गुलाम से भी गई गुजरी थी। मेरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ है, लेकिन मेरी रूह भी जख्मों से छलनी है। तुम तो आज़ाद इंसान हो शामिर। मुझे जख्म दे के रोने भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि अगर मैं रो देती तो वो मेरी आंखों में एसिड डाल देता। इसने दर्द से आंखें मींच ली। जब वो लम्हा दोबारा से इसके सामने खड़ा हो गया हो, जैसे किसी बच्चे से पूछा जाए कि तुम्हें आइसक्रीम में कौन सा फ्लेवर पसंद है, वैसे ही मुझे से कोई पूछे कि तुम्हें किस चीज़ से मार खाने में ज़्यादा दर्द महसूस होता है, बेल्ट से, सिगरेट से, लाइटर से, छुरी से, रस्सी से, हाथ से, और मैं बोल दूं कि हर मार का अपना एक अलग दर्द होता है। इसकी आंखें चलक पड़ी। शामी ने बेसाख्ता इसके हाथ की पुश्त पे अपना हाथ रख दिया। बहुत दर्द होता था शामिर, बहुत। इसने अपना सर इसने अपना सर थका के शामिर के कंधे पर टका दिया। शामिर की आंखों में आंसू आ गए। मैं चीखती थी दर्द से, तो मेरे मुंह पे हाथ रख के इन आवाज़ों को दबा दिया जाता था। मैं चीख चीख कर रोने के लिए तरस गई थी, और अगर मैं रोना चाहती तो ना, इसने रुक के सिसकी ली तो मुझे सज़ा के तौर पे पलके झपकाने ना दिया जाता, और अगर मैं पलके झपक देती तो मुझे थप्पड़ मार देता। वो रोने लगी। देर तक रोती रही। शामिर ने इसे नहीं रोका। रोने से वो इसके कंधे पर सर रखे रो रही थी। शामिर के भी आंसू गिर के जलीश के बालों में जज़ब हो गए थे। काश वो इसे अकेला ना छोड़ता, काश इसके रास्ते से हट के साइड पे ना होता, काश वो जलीश को भगा देता तो ये सब ना होता। अपने गीले बाल पुश्त पे डाले वो किचन में सैंडविच बना रही थी। जब शामिर किचन में पानी पीने आया, वो इसे देख के ठट कर रह गया। जलीश मगन अंदाज में जैसे ही मुड़ी इससे टकराई, शामिर जल्दी से पीछे हुआ। इसके निखरे रूप से नजरें चुराता बोला, मैं पानी पीने आया था। वो हल्का सा मुस्कुराई। अच्छा तो पी लो। हाँ हाँ पी रहा। वो सर खुजाता पानी लेने लगा। पानी पी के वो वहीं खड़ा। जलीश ने इसे देखा। कुछ चाहिए था शामिर? नहीं नहीं तो अच्छा। वो फिर से काम में मसरूफ हो गई, और वो इसे देखने लगा। अगर मुझे देखने से दिल भर गया हो तो किचन से बाहर जा सकते हो, वो मसरूफ अंदाज में से देखे बिना बोली। शामिर शर्मिंदा सा बौखला गया। कुछ समझ नहीं आया तो किचन से ही निकल गया। जलीश ज़हरीला मुस्कुरा पड़ी। ये ले मज़ेदार से सैंडविच रेडी हो गए। जलीश ट्रे लिए लाउंज में आ गई। शर्मीन को देखकर इसने आहना को भी सैंडविच दिए। शामिर की तरफ आई तो नजरें चुराने लगा। सैंडविच वो शरारत आंखों में लिए इसे देख रही थी। इसे सैंडविच देख के वो शर्मीन के पास आके बैठ गई। मज़े के हैं? शर्मीन के कहने पे जलीश मुस्कुराई। थैंक यू। आहना ने भी तारीफ की। इसने शामिर को देखा जो इसे ही देख रहा था। इसके देखने पे शामिर बौखला गया। यमी है। जलीश ने अपनी हंसी रोकी, जबकि शामिर सर खुजाने लगा। जलीश बाहर जाना छोड़ ही चुकी थी। अब रात में शर्मीन ने ज़बरदस्ती से शामिर के साथ बाहर भेज दिया। एक जगह रुक के इसने अपने लिए और जलीश के लिए आइसक्रीम मंगवाई। खाते हुए वो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ की बातें सुना रहा था। वो हंस रही थी। हंसते हंसते आइसक्रीम इसके नाक से लग गई। शामिर ने इसे टिश्यू दिया। वो सर झुका के अपना नाक साफ करने लगी, जब जानी पहचानी आवाज़ इसके कानों से टकराई। एक्सक्यूज़ मी। यस। शामिर ने खिड़की से बाहर देखा तो सामने जवाद शाह था, जो काफ़ी जल्दी में लग रहा था। इसने जलीश की तरफ देखा। इसका चेहरा साइड से बालों में छुपा हुआ था। फिर इसे देखा। अपनी कार थोड़ा आगे ले जाएंगे प्लीज़? मेरी कार ही फंस गई है बीच में। इसका दिल चाहा कि जवाद शाह को इतना मारे कि इसकी शक्ल बिगड़ जाए, लेकिन वो खुद कंट्रोल करता जी कहकर गाड़ी आगे ले गया और कदरे पुरसुकून जगह पे ले जाकर गाड़ी साइड पर रोक दी। जलीश, जो यूं ही बैठी कांप रही थी, मिस शामिर के छूने पे उछल ही पड़ी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मिस, इट्स मी शामिर। शामिर घबरा घबरा लहजे में से कहने लगा। वो खौफजदा सी से देखने लगी। शामिर, इसने मुझे देख लिया, अब वो मुझे ले जाएगा, मुझे मार देगा। वो रो रही थी। शामिर की शर्ट पकड़े वो कांप रही थी। शामिर इसे समझाने लगा, इसने नहीं देखा आपका चेहरा छुपा हुआ था। नहीं नहीं, इसने देख लिया मुझे, अब क्या होगा? अब मेरा क्या होगा? वो सुन ही नहीं रही थी। वो मुसलसल एक ही जुमला बोले जा रही थी।
मिस प्लीज जलीश। आखिर इसने ऊंची आवाज में उसका नाम लिया। वो रुक के शामिर को देखने लगी। इसने नहीं देखा आपको, आप रिलैक्स हो जाएं प्लीज, वो इसकी आंखों में देखता बोला तो जलीश इसका शर्ट छोड़कर शर्मिंदा सी सर झुका के बैठ गई। सॉरी, शामी ने जल्दी से कहा। वो करके सीधी होके शीशे से बाहर देखने लगी। इसे शर्मिंदगी हो रही थी कि किस तरह इसने शामिर की शर्ट को पकड़ा हुआ था। वो शर्मिंदगी से बचने के लिए बाल बांधने लगी। शामिर के मुंह से बेख्तियार फिसला, ऐसे ही रहने देना। जलीश चूंकि इसकी तरफ देखने लगी जो दिलचस्पी से इसे देख रहा था। इसकी आंखों से बचने के लिए इसने जल्दी से अपने बाल छोड़ दिए और बाहर देखने लगी। डर खत्म करो जलीश, अब तुम अकेली नहीं हो, शर्मीन सारी बात सुन के बोली। वो मुझे ले जाएगा दोबारा से, वो यही बात बार बार बोल रही थी। ऐसे कैसे ले जाएगा भाई, इसके बाप की जगह थोड़ी है, शर्मीन ने मुंह बना के कहा। फिर इसे देखने लगी। निकाह में हो इसके, निकाह में हो इसके। जलीश ने जल्दी से सर नफ़ी में हिलाया। फिर वो क्या बोल के तुम्हें ले जाएगा? अरे कानून भी किसी चीज़ का नाम है कि नहीं, एमी ले जाएगा, वो अपने महसूस अंदाज में बोली। तो सबको हंसी आ गई। जलीश भी मुस्कुरा पड़ी। अरे मामा निकाह कर दे, निकाह कोई नहीं ले जाएगा। फिर आना के कहने पर जलीश इसे हैरत से देखने लगी। शर्मीन इसे सवारी नज़रों से इसे देखने लगी। और किसके साथ? यही हमारे शामिर भाई के साथ। शामिर का इस लम्हे दिल चाहा कि आना का मुंह चूम ले खुशी से। जरमीश मुंह खोले से देखने लगी जबकि शर्मीन मुस्कुराने लगी। हाँ ये ठीक है। अरे नहीं, मैं इससे 5 साल बड़ी हूँ। जलीश के अचानक बोलने पे शर्मीन और आना को हंसी आ गई जबकि शामिर का मुंह बन गया। फिर भी बड़ा मैं ही लगता हूँ। जलीश ने घूर के इसे देखा। मैं टीचर हूँ तुम्हारी। वो अब कुछ देर पहले वाली कैफियत से बाहर निकल गई थी और अब शामिर को घूर रही थी। शामिर लुफ्तंदोज होते बोला, थी टीचर ही टीचर ही होती है, वो जोर देकर बोली। और स्टूडेंट का दिल आ ही जाता है इतनी खूबसूरत टीचर पे। शामिर के बेसाख्ता बोलने पर जलीश कुछ देर चुप रह गई। दोनों माँ बेटी इनकी बातों को दिलचस्पी से सुन रही थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपकी इजाज़त की देर है बस। इसने जिद होकर शर्मीन और आना को देखा। दोनों हंस रही थी। फिर शामिर को देखा जो इसे नज़रों के खिसार में लिए मुस्कुरा रहा था। वो उठकर अपने कमरे में चली गई। नाराज़ कर दिया इसे, शर्मीन ने इसे नाराज़गी से कहा। वो कंधे जा गया। वो सुबह नाश्ते पे नहीं गई। इसे उलझन हो रही थी कि वो कैसे जाए सबके सामने। वो सब से नाराज़ होके आई थी रूम में, अब कैसे जाती नाश्ते पे। शर्मिंदा हो रही थी। इसे दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो दरवाजे की तरफ देखने लगी। शर्मीन मुस्कुराती हुई अंदर आई तो वो जल्दी से खड़ी हो गई। आंटी आप आइए प्लीज़। वो मुस्कुराती अंदर आके बैठ गई। जलीश को पास बैठा के इसके चेहरे पर प्यार करने लगी। नाराज़ हो हमसे जलीश? नहीं आंटी, बिल्कुल भी नहीं, नाश्ते पे नहीं आई, मुझे परेशानी होगी। जलीश का सर झुक गया शर्मिंदगी से। जलीश, आना ठीक कह रही थी, तुम दोनों तो एक दूसरे को जानते भी हो और तुम्हें तो शामिर का पता है वो कितना तुमसे प्यार करता है, फिर बात मानने में क्या हर्ज है। वो रुक के इससे देखने लगी। आंटी वो बोलो बेटा, वो हल्का रही थी। शर्मीन ने नरमी से बात शुरू की। ये एज डिफरेंस मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती मेरी बेटी, मेरे लिए ये अहमियत रखता है कि दोनों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है। ये फैसला तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तब्दीली लाएगा, देख लेना। आंटी मैंने कभी शामिर को इस नज़र से देखा ही नहीं। इसने उज़र पेश किया तो शर्मीन मुस्कुरा पड़ी। तो अब देखो, बल्कि सुबह शाम देखो, मेरा बेटा तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो तुम्हें खुश रखेगा। जलीश इसे समझ नहीं आ रहा था अब और कौन सा बहाना बनाए। इसे कुछ समझ नहीं आया तो इसे शामिर से ही बात करना बेहतर लगा। शामिर अपने कमरे में नीम दराज मोबाइल में लगा हुआ था जब दरवाजे पर नॉक हुआ। कम इन। वो बिना देखे बोला। जलीश अंदर आई। वो वही खड़ी इसे देखने लगी। शामी ने मोबाइल से नजरें हटा के देखा तो सामने जलीश को देख के वो एक यकदम से खड़ा हो गया। आप प्लीज आए। जलीश दरवाज़ा बंद करके सोफे पर जाके बैठ के शामिर भी पास में बैठ गया। मुझे बात करनी थी। जी कहिए। वो मुतरब नज़र आ रही थी। मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों? शामिर के अचानक पूछने पर जलीश इसे देखने लगी। क्या मतलब क्यों? वो फिर भी इसे देखता रहा। मैं फिर भी पूछूंगा क्यों? मैं तुम्हारी टीचर हूँ। तो जलीश की इसके यूं देखने से कंफ्यूज होगी। टीचर से कौन शादी करता है? मैं जलीश ने जिच होके से देखा और इत्मीनान से मुस्कुरा रहा था। शामिर मुझे गुस्सा दिला रहे हो अब। निकाल दे गुस्सा, मैं सुन रहा हूँ। मैं तुम्हारा घर छोड़ के चली जाऊंगी। वो धमकी देने लगी। मैं लॉक लगा दूंगा, कैसे जाएंगी आप? शामिर मसला क्या है तुम्हारा? आपसे मोहब्बत। वो इतना मुतमिन था कि जलीश को बार बार इस पे गुस्सा आ रहा था। तुमसे बात करना फजूल है। वो उठने लगी तो शादी कर लें। जलीश घूर के इसे देखने लगी। शर्म कर लो थोड़ी सी तुम। आपको शर्माते देखना चाहता हूँ मैं। मेरी सादगी देखो मैं क्या चाहता हूँ। जलीश गुस्से से कमरे से निकल गई। शामिर मुस्कुरा पड़ा। मिस जलीश,
वो चुपचाप बैठी डिनर कर रही थी सबके साथ। शामिर कनखियों से उसे देखने लगा। जिसके मुंह पे 12 बज रहे थे। वो ज़ेलम मुस्कुरा पड़ा। आना, मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं तुम्हारे? जलीश को छेड़ने के लिए इसने आना को पुकारा। वो जो बेखबर थी अचानक चौंके से देखने लगी। मैं कब भाई? जलीश भी से देख रही थी। अच्छा, मुझे लगा 12 बज रहे हैं। वो ज़ेलम मुस्कुराता बोला। जलीश इसे घूरने लगी सीधी तरह से। जलीश बोलो नाम। शामीर ने मसनूई हैरत से देखा। ओ मिस जलीश, आपके मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं? जलीश अब लब नीचे से देखने लगी। तंग नहीं करो, मैं खाना खा रहा हूँ। वो कंधे बचा के बोला। आना ने अपनी हंसी दबाई। शर्मीन ने अपने बेटे को टोका। शामीर, नहीं तंग करो मेरी बेटी को। मामा, आपकी ये बेटी मुझे तंग करती है। मैं कब? वो हैरान सी शामिर को और शरारत पे उकसा रही थी। शर्मीन हंसने लगी। अरे नहीं बेटा, इसकी बातें ना सुनो, ये तंग कर रहा है तुम्हें। शामिर वो शामिर को तनबीह करने लगी। शामिर मुस्कुरा पड़ा। ओके ओके, मैं चुप। जलीश से ही देख रही थी। शामिर ने इससे आंख मारी तो जलीश सटपटा गई। आज वो सब क्लिफ्टन आए हुए थे। जलीश काफ़ी दिनों बाद बाहर आई थी इन सब के साथ। इसे काफ़ी खुशी हो रही थी। आंखें बंद करके वो सूरज की किरणों को खुद पर महसूस करके लुत्फानंदोज़ हो रही थी। वो इन तीनों से थोड़ा फासले पर खड़ी थी। इसने आंखें खोली तो सामने जावर शाह नजर आया, जो किसी लड़की के साथ बहस कर रहा था। इसे अपना आप बेजान होता महसूस हुआ। इसे लगा वो अब गिर जाएगी। वो पीछे की तरफ जाने लगी। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जवार शाह इसके बिल्कुल सामने खड़ा खड़ा है। जवार शाह ने इसे नहीं देखा था, लेकिन जलीश का पूरा वजूद लर्ज रहा था। शामिर की नज़र इस पर पड़ी तो जल्दी से उठ के इसके पास आया और पीछे से इसे थाम के इसका नाम लिया। मिस जलीश। जलीश मुंह मोड़ के इसके सीने से लग गई। शामिर ने चौंके से देखा। वो कांप रही थी। वो शामिर। वो शामिर को समझ नहीं आई क्या क्या करे। घर चले मिस जलीश। वो इस बात में सर हिलाने लगी। वो मुझे देख लेगा, वो यही है। शामी ने चारों तरफ देखा। जवार शाह इसे कहीं नजर नहीं आया। वो नहीं है, देखिए। नहीं नहीं शामिर, मेरे मीर, चलो यहाँ से प्लीज़। शामिर इससे लिए शर्मीन और हाना के पास आए और यूं चारों घर की तरफ रवाना हुए। रस्ते भर वो डर और खौफ से कांपती रही। शामिर बार बार इस पर एक नज़र डाल रहा था। शर्मीन इसे अपने साथ लगाए तसल्ली दे रही थी, लेकिन बेसूद। जब मैं कहता हूँ शादी कर ले मुझसे तो आप मना कर देती हैं, और सबसे ज़्यादा सिक्योर भी आप खुद को मेरे साथ फील करती हैं। जलीश बालकोनी में बैठी थी जब शामिर बिल्कुल इसके सामने आके बैठ गया। जलीश खामोशी से इसे देखने लगी। मुझे डर डर लगता है शामिर, मैं बहादुर होना चाहती हूँ, लेकिन मैं इसे सामने देख कर डर जाती हूँ। वो अपना चेहरा हाथों पे छुपा गई। तो आप ना डरे मिस जलीश। शामिर के कहने पे वो इसे देखने लगी। इसने मेरे अंदर इतना खौफ डाल दिया है कि मैं वो सर झुका गई। शामिर ने इसके हाथ थाम लिए। मैं आपके साथ हूँ हमेशा जलीश। आई मीन मिस जलीश, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। तभी तो मैं कहता हूँ शादी कर लें मुझसे। आई स्वेयर, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप जैसा चाहेंगी मैं वैसा ही रहूँगा। लेकिन वो रुक के इसके चेहरे के तासुरात देखने लगा। मैंने हमेशा आपका ही इंतज़ार किया है, आपको ही देखा है, आपको ही चाहा है, आपसे मोहब्बत की है। ये 2 साल जब मैं अलग हुआ ना, तो आपसे तो रोज़ ये सोचकर खामोश हो जाता, खामोश करवाता अपनी मोहब्बत को कि जिधर जैसे आप खुश हो मैं इसी में खुश हूँ। जो मिली तो मॉम डेली यही कहती कि शादी कर लो, लेकिन मिस सच में मुझे किसी में इंट्रक्शन फील ना होती। मुझे आपके सिवा कोई पसंद नहीं आता। जलीशी से देखी जा रही थी। आपको इस रात इस हालत में देख के आप नहीं समझ सकती कि क्या गुजरी थी मुझ पे। आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। उफ, वो सर पकड़ के बैठ गया। जलीश किंग रह गई थी। शामीर ने नजर उठा के उसे देखा। आई लव यू मिस, आई लव यू सो मच। बस यही चाहता हूँ आप खुश रहें, हमेशा खुश रहें। लेकिन मुझे खुशी होती अगर मेरे नाम से मेरे निकाह में होती। फिर भी मैं इंतज़ार करूँगा। जब तक आप कहेंगी मैं इंतज़ार करूँगा। वो जलीश की आंखों में देखता बोला। जलीश नज़रें चुरा गई। शामिर भी धीरे से उठ के वहाँ से अंदर कमरे में चला गया, लेकिन वो देर तक वहीं बैठी रही। शामिर की बातों पे गौर करती रही। अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी का सोचती रही। आने वाले वक़्त इसके लिए क्या फ़ैसला करने वाला है वो नहीं जानती थी। शर्मीन किचन में काम कर रही थी जब जलीश किचन में आई और शर्मीन को देखने लगी। अरे बेटा, कोई काम था? नहीं, वो जल्दी से बोली। फिर रुक वो जल्दी से बोली, फिर रुके इन्हें देखने लगी। जी, आई मीन काम था। हाँ, बताओ। आप रुक के मेरी तरफ तो देखे। शर्मीन मुस्कुरा के काम छोड़ के इसे देखने लगी तो जलीश को समझ नहीं आई कैसे बात करे। जलीश, क्या बात है बेटा?
आंटी आप वो इसने शर्मीन को देखा फिर सर झुका लिया। आप शामिर को बोल दे मैं शादी कर रही हूँ इससे। शर्मीन हैरत से और खुशी से देख रही थी। अरे जलीश, उन्होंने जलीश को गले लगा लिया। तुमने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे शामिर के साथ। वो मुस्कुरा पड़ी। इसका माइंड खाली था। इसे नहीं पता था कि इसने सही फैसला किया है कि गलत, लेकिन इसका दिल चाह रहा था कि वो इनकी ख्वाहिश का एहतराम करे। उनकी खुशी इसी में थी कि वो शामिर का साथ कबूल कर लें। सो इसने वही किया। शामिर को जब इल्म हुआ था तब से जलीश से अकेले में बात करने के लिए पर तोड़ रहा था, लेकिन वो सामने नहीं आ रही थी। अभी भी वो चुपके से किचन से अपने कमरे की तरफ जा रही थी। जब शामिर इसके सामने आ गया वो चीखने लगी थी। जब शामिर ने इसके मुंह पे हाथ रख लिया वो उसे देखने लगी। मैं हूँ। वो इसे लेके साइड पे ले गया। क्या कर रहे हो यहाँ, क्यों लाए हो मुझे? आहिस्ता बोले प्लीज़। क्यों? क्या मतलब क्यों? मैं फिर भी पूछूंगी क्यों? जलीश आंखों में शातिली से देख रही थी। शामिर ठटक गया। आप मुझे कॉपी कर रही हैं? इसे वो दिन याद आ कि जब जलीश को ऐसे ही जिज कर रहा था। हाँ तो जलीश, वो दूबदू बोली तो शामिर खुलकर मुस्कुराया। थैंक यू सो मच। जलीश भी मुस्कुरा रही थी। मेरी कुछ शर्तें हैं। वो कैसी शर्तें? वो शरारत से देखने लगी। मैं तुमसे बड़ी हूँ सो मुझसे ज़्यादा बदतमीजी नहीं करोगे। मैं जब गुस्से में होंगी तो चुप करके बैठे रहोगे। वो रुकी तो शामिर दिलचस्पी से देखता मुस्कुराया। अच्छा और? वो इसकी नज़रों से घबरा के बोली। ज़्यादा फ्री नहीं होगे? वो हंस पड़ा। अच्छा आपका हुक्म सर। आंखों पे जलीश इसके अंदाज पर सटपटा गई और जाने लगी। जब शामिर दोबारा से इसके सामने आ गया। अब क्या है? जलीश इसे देखने लगी। वो मुस्कुरा पड़ा। कुछ नहीं। जलीश मुंह बनाकर आगे बढ़ गई। शादी की तैयारी अरूज पर थी। शर्मीन का बस नहीं चल रहा था। पूरे बुटीक्स के कपड़े इसके लिए ले ले आना तो बार बार इसे भाभी बोल बोल के मज़े लेती और शामिर को पर ही लग गए थे। इसकी बतीसी ही अंदर नहीं जा रही थी। जलीश सबको देख देख कर मुस्कुरा रही थी। सब खुश थे और जलीश भी खुश थी, ये सोच के कि नई ज़िंदगी की शुरुआत इसके लिए अच्छी साबित होगी। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए वो आज शामिर के कमरे में इसकी दुल्हन के रूम में बैठी हुई थी। शामिर इसे यकटक देखे जा रहा था। जलीश कन्फ्यूज़ हो गई। घूरना बंद करो शामिर। जलीश अपने नाम पे वो चूम के इसे देखने लगी। शामिर ने मसनूई हैरत से आंखें फैलाई। आप भी अब भी मिस बोलूं आपको? अब तो बीवी हो मेरी यार। जलीश को हंसी आ गई। वो इसके और करीब आया। फ्री नहीं हो? जलीश ने अचानक कहा। वो हंसने लगा। नॉट फेयर नाउ। जलीश मुस्कुरा के पलके झुका गई। शामिर इसके करीब हुआ। इसकी सांसें जलीश के चेहरे को छूने लगी। जलीश का दिल जोर से धड़कने लगा। वो इसके होंठों पे झुकना चाहता था। जब इसे जलीश के वजूद में लजराहट का एहसास हुआ वो चूक के इसे देखने लगा। जलीश 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 की आंखों में खौफ ठहरा था। क्या हुआ मेरी जान? इसके होंठ हिल रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रही थी। इसे जवार शाह का जहराना अंदाज याद आया जब वो इसके करीब आ रहा था। जलीश ने इसे धिक्का देना चाहा तो वो इसे करीब करके ज़बरदस्ती करने लगा। जलीश, अगर आप रेडी नहीं हो तो डोंट वरी। आप जितना वक्त लेना चाहे ले सकती हो। आई डोंट माइंड। मेरे लिए आपकी खुशी मकदम है। वो इसके लड़ते वजूद को अपनी बाहों में लिए लेके बोला। मेरे लिए यही काफ़ी है कि आप मेरी मेरी हैं जलीश। आप मेरे पास हैं। आप रिलैक्स हो जाएं। अब वो गहरे गहरे सांस ले रही थी। फिर आंखें मौत के इसने शामिर के कंधे पर सर रख दिया। इसे समझ नहीं आ रही थी इसकी ये कैफियत क्यों हो रही थी, लेकिन इसी अचानक अपना वजूद कपकपाता हुआ महसूस हुआ था। सुबह इसकी आंख खुली तो वो अपने पहलू में सोए शामिर का जायजा लेने लगी। वो सो रहा था अभी। इसकी आंखों के सामने इसे शामिर का चेहरा घूम गया, जो इसका स्टूडेंट हुआ करता था, जो सारा दिन टेबल पे कोनी रखे क्लास में जलीश को देखता रहता। इसकी लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। अगर मुझे देखने से दिल भर गया हो तो मैं आंखें खोल दूं? शामिर कहने पे वो बुलखला गई और झट से बोली, नहीं। क्यों? मुझे भी हक है आपको देखने का। इसने झट से आंखें खोल दी तो वो उठ के बैठ गई। वो भी बैठ गया। ये क्या? दिस इज़ नॉट फेयर। जलीश से देखने लगी। मुझे भूख लगी है, मैं जा रही हूँ। थोड़ी शर्म कर लें, आप दुल्हन हैं अभी। शामिर से शर्म दिलाने लगा। वो मुंह बना के बोली, तो जाओ नाश्ता बना कर लाओ मेरे लिए। अरे नहीं नहीं, आप तो बेटी हैं इस घर की। निकल निकल गई हवा। अभी कहाँ? वो शरारत से बोला तो जलीश से घूरने लगी। सुधर जाओ शामिर, मैं तुमसे बड़ी हूँ, लगती तो छोटी ही हैं। वो मुंह बनाकर बोला तो जलीश को हंसी आ गई। मम्मा हमें हनीमून पे भेज रही हैं। वो जो टीवी देख रही थी। शामिर ने आके धमाका ही कर दिया। ऐसे कैसे? मना कर दो। शामिर इसे शाकी नज़रों से देखने लगा। बहुत
आप बहुत बुरा कर रही हैं मेरे साथ, रहम नहीं आता आपको तो। जलीश से घूरने लगी। मत बुरा करे ऐसे मुझे, मैं शोहर हूँ अब आपका, आपकी क्लास का स्टूडेंट नहीं हो। सर झुका के अपने लब काटने लगी। शामिर भी दुखी होकर साइड पे टेबल के साइड पर बैठ के मोबाइल पे बिजी हो गया। जलीश ने सर उठा के इसके संजीदा चेहरे को देखा। वो एक नॉर्मल अज़वाजी ज़िंदगी चाह रहा था जलीश के साथ, और तो कुछ नहीं चाहता था। वो बीवी है इसकी, वो कुछ गलत तो कर नहीं रहा था। जलीश दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या तुम्हारे दिल में शामिर के लिए कोई जगह नहीं? क्या कभी तुम्हारा दिल नहीं धड़का शामिर की मोहब्बत का सोच के ही? इस ख्याल के साथ ही इसके दिल की धड़कन बेतरतीब हुई थी। इसने झिझकते हुए इसे आवाज़ दी, शामिर जी। वो मसरूफ़ अंदाज में बोला, कब जाना है? वो झिझक रही थी। आपका दिल नहीं, हम नहीं जा रहे। मेरा भी दिल कर रहा है कि। फिर झिझक के रुक गई। शामिर के लब मुस्कुरा दिए इसकी इस उदास अदा पे, लेकिन वो खामोश रहा और मोबाइल से नज़रें नहीं हटाई। शामिर, इसने दोबारा इसे झिझक के बुलाया तो इसके करीब हो गया। जी शामिर की जान। जलीश बुलखला गई। मैं आप क्या? वो इसके अंदाज में शरारत से बोला, मैं मम्मा बुला रही हैं। वो उठने लगी। शामिर ने दोबारा इसे बैठा दिया। बैठे आराम से, वो नहीं बुला रही। वो अपने खुशक होंठों पर ज़बान फेरने लगी। शामिर की कुर्बत से वो बुलखला रही थी। प्यास लगी है, पानी पी लो। नहीं, मुझे भी प्यास लगी है, वो शरारत से बोला। तो मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ ना, वो कहने लगी तो शामिर इसकी आंखों में झांकने लगा। मुझे पानी नहीं चाहिए। वो पलके झुका गया। शामिर ने इसकी पेशानी पे अपने लब रख दिए। जलीश इसे देखने लगी। आप ब्लश करती हुई बहुत प्यारी लगती है जलीश। जलीश पलके झुका गई। शामिर की कुर्बत से इसे सुकून मिल रहा था। कोई डर, कोई खौफ का एहसास नहीं था अब इसके अंदर। वक्त के साथ साथ वो शामिर के संग इस डर और खौफ को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहती थी। इसने धीरे से अपना सर शामिर के सीने पर रख दिया। शामिर के संग वक्त बहुत खूबसूरत था। वो अपने सारे दर्द भूल गई थी। इसे बस यही याद था कि शामिर इसके साथ और हमेशा रहेगा। शामिर जैसे हमेशा जलीश की चाह थी, इसे हमेशा यही था कि जलीश भी इससे मोहब्बत करे ना करे, लेकिन इसकी शामिर की मोहब्बत में वो अब सब दुख भूल जाए और शामिर की मोहब्बत को कबूल कर ले। जलीश से इतनी मोहब्बत और अपनाइत पाके वो तो हवा में उड़ रहा था। इसे तो लग रहा था कि सारी ज़िंदगी जलीश को वो अपनी मोहब्बत करने का इजहार करने में गुजार देगा, लेकिन जलीश का इसके लिए मोहब्बत जतलाना, इसकी कुर्बत में जलीश की मुस्कुराहटें, इसके जवाब में जलीश की इजहार मोहब्बत इसे सरशार किए जा रहा था। एक ऑफिशियल पार्टी में वो शामी के साथ आई हुई थी। शामी ने इसे अपने दोस्तों की फैमिली से तारुफ कराया। इन सब की जोड़ी को सराह रहे थे। जलीश को प्यास महसूस हुई तो वो कोल्ड ड्रिंक लेने साइड पे लगे टेबल तक गई। हेलो मिसिस जलीश। शामिर जानी पहचानी आवाज़ पे वो चूंकि मुड़ी तो सामने खड़े शख्स को देखकर सकते में आ गई, जबकि जवाद शाह मुस्कुरा के इसके सरापे को देख रहा था। वट वट अ प्लेजेंट सरप्राइज माई डियर। जलीश बिना पलके झुपकाए से देखे जा रही थी। आज जलीश, यू आर लुकिंग सो ग्रोशियस माई डियर। वो इसे सरता पा इसे देखता बोल रहा था, उफ आप तो है ही खूबसूरत, मुझे पता नहीं होगा तो और किसे होगा। शामिर ने जलीश की तलाश में नज़रें दौड़ाई तो इसकी नज़र जलीश के पास खड़े जवार शाह पर पड़ी। वो तेज़ी से इस तरफ आया और जलीश की कमर के गिर्द बाजू हायल करके इसे खुद से करीब करते कहने लगा, अरे जानम, मैं आपको ढूंढ रहा था। जलीश ने चूंकर शामिर को देखा जो मुस्कुरा के अब जवार शाह को देख रहा था। जवार शाह संभल गया था। मिस्टर शामिर, नो डाउट यू हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ। आई नो। शामी ने जवाब में मुस्कुराया, फिर जरीश को देखने लगा। लेट्स कोल्ड ड्रिंक और इसे लिए आगे बढ़ गया। अपने दोस्तों से एक्सक्यूज़ करता हुआ बाहर निकल गया। जवार शाह इन्हें ही देख रहा था। शामिर को मालूम था कि अब जलीश वहाँ नहीं रुकेगी। इसके चेहरे पर फैलते खौफ को वो देख चुका था। क्यों क्यों इसे देख के मैं कुछ नहीं कर पाती? डर और खौफ से मैं कुछ बोल क्यों नहीं पाती? वो कमरे में बैठी रोए जा रही थी। शामिर इसे चुप करा रहा था, लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी। मेरा दिल करता है इसे कत्ल कर दूं, वैसे ही तड़पा तड़पा के रुला रुला के मर जाए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाती। जलीश, आप बहादुर हैं माय डियर वाइफ। नहीं नहीं हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। शामिर वो इसकी बात काट के बोली। रोना नहीं बंद हो रहा था इसका। शामिर ने इसे बाहों में भर लिया। बस कर दो यार, मुझे ये रोना नहीं देखा जाता आपका। जलीश, इसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी इसे। प्लीज़ नहीं रोए प्लीज़। जलीश वो इसे चुप करवाने की कोशिश में लगा हुआ था
اور زلیش چپ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ قسمت نے ایک بار پھر اسے زوار شاہ کے مقابلے کھڑا کیا تھا۔ وہ سب کدھر چھپے کدھر جائیں جہاں زوار شاہ نہ ہو اس کے آس پاس۔ اب شاہ میر کی بیوی تھی وہ، لیکن پھر بھی زوار شاہ کی آنکھوں کی چمک اس سے سر تا پا لرزا رہی تھی۔ زلیش آخر سامنا ہو ہی گیا ہمارا۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہمارا سامنا ہو ہی جائے گا ایک دن، اور اس کے بعد تمہاری بربادی کے دن شروع ہو جائیں گے۔ زوار شاہ نے جب سے زلیش کو دیکھا تھا اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ اسے زلیش اپنے سامنے چاہیے تھی ابھی، لیکن وہ مسکرا پڑا۔ ادھر بھی آ ہی جاؤ گے زلیش، پھر میں تمہیں اور ہماری دل فریب ملاقاتیں وہ ایک ہی نقطے کو گھورتے ہوئے خود سے بولے جا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کسی وقت وہ شاہ میر سے زلیش کو چھین کر لے آئے، ادھر اپنے پاس اس کا حلیہ بگاڑ دے، اپنے 2 مہینوں کا غصہ اتار دے وہ اس پہ لیکن اتنا آسان نہیں تھا۔ صبر کرو زوار شاہ، صبر، اس سے صبر کا پھل میٹھا ہی ہوگا۔ وہ خود سے بڑبڑاتا مسکرایا تھا۔ زلیش کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب اس کے موبائل پہ کال آئی۔ اس نے ریسیو کی۔ ہیلو زلیش۔ وہ آواز سن کر زلیش کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی، لیکن اسے خود کو مضبوط بنانا تھا، ڈرنا نہیں تھا۔ اس نے کیوں کال کی ہے؟ وہ اپنے ڈر کو حت الکمال چھپا کے بولی، تم سے بات کرنی ہے، مس کرتا ہوں تمہیں بہت۔ زوار شاہ جس انداز سے بولا تھا زلیش کو لگا وہ ابھی چکرا کے گر جائے گی۔ آئندہ مجھے کال مت کرنا، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا تو زوار شاہ کا قہقہ بلند ہوا، بہت بولنا آ گیا ہے تمہیں، پر پرزے نکل آئے ہیں۔ جس دن سامنا ہوا زلیش، اس دن تمہارا حشر کر دوں گا۔ زلیش نے لرزتے ہاتھوں سے موبائل بند کر کے بیڈ پہ پھینک دیا اور خود پر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ زوار شاہ پھر سے اس سے برباد کرنے آ گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کی کپکپاہٹ کم نہیں ہو رہی تھی۔ پانی دینا زلیش۔ ڈنر کرتے ہوئے شامین نے پانی مانگا تو وہ پلیٹ دینے لگی اسے۔ شامین نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، پہلے دنوں جیسی خوشی جیسے من ختم ہو گئی تھی۔ شرمین اور آہنا بھی اسے دیکھ ہی رہی تھی۔ زلیش ہاں وہ چونک کر شامین کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ کہیں نہیں۔ وہ شرمندہ سی سب کو دیکھنے لگی، پھر پلیٹ پہ جھک گئی۔ وہ بھی چپ کر گیا۔ سب کے سامنے اسے زیادہ سوال کرنا اسے ٹھیک نہیں لگا، مگر جب رات کو کمرے میں زلیش اس کے کندھے پر سر رکھے لیٹی تھی تب شامیر اسے پوچھنے لگا، کیوں پریشان ہو زلیش کیا بتاتی اسے؟ نہیں تو نہیں ہوں پریشان، جھوٹ بول رہی ہو۔ شامیر دکھی لہجے میں بولا۔ نہیں۔ وہ آنسو چھپاتے ہوئے بولی۔ زلیش رو رہی ہو؟ کیا ہوا میری جان؟ وہ پریشان ہو گیا تھا، وہ پھر آ گیا ہے۔ شامیر مار ڈالے گا وہ مجھے، وہ روتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ شامیر نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ کچھ نہیں کر سکتا وہ، آپ اکیلی نہیں ہو زلیش، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ شامیر کے یقین دلانے کے باوجود وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں ڈریے پلیز، ڈر کو خود سے دور رکھیے، بس یہی سوچیے کہ میں آپ کے پاس ہوں، وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی بات پر زلیش مسکرا پڑی، لیکن اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ خوف نے اسے اپنی لپٹ میں لے رکھا تھا۔ اس نے شامیر کو نہیں بتایا کہ زوار شاہ کی کال آئی تھی ورنہ وہ پریشان ہو جاتا۔ بس اندر ہی اندر خوفزدہ ہو رہی تھی آنے والے وقت کا سوچ کے۔ کچھ پتہ چلا زلیش کا؟ زوار شاہ کے اندر آتے ہی اذلان شاہ نے پریشانی سے پوچھا۔ نو ڈیٹ، نہیں پتہ چلا ابھی۔ اس نے زلیش کے سامنے جانے والی بات اذلان شاہ سے چھپائی۔ کیا کر رہے ہیں تمہارے آدمی؟ مہینے ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک زلیش کا کچھ پتہ نہیں، نہ جانے کہاں بھٹک رہی ہوگی وہ بچی۔ وہ دکھی لہجے میں بولے۔ زوار شاہ نے انہیں بتایا تھا کہ اس کا ایک ملازم زلیش کی عزت سے کھیلنا چاہتا تھا، تبھی وہ بھاگی ہے اور غائب ہے۔ مل جائے گی ڈیڈ، بہت جلد مل جائے گی۔ زوار شاہ کا انداز پرسرار تھا۔ اذلان شاہ ٹھٹک کے اسے دیکھنے لگا تو وہ مسکرا پڑا۔ آئی مین آپ کی بیٹی مل جائے گی، بس صبر رکھیے گا۔ اذلان شاہ سر ہلا کے پانی پینے لگے جبکہ زوار شاہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہیلو زلیش۔ زوار شاہ کی آواز سنتے ہی اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ جب دوبارہ سے کال آئی وہ موبائل اسکرین کو خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دوسری بار تیسری بار کال آنے پہ اس نے فون کان سے لگایا تو زوار شاہ کی کرخت آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آئندہ میری کال ڈسکنیکٹ کرنے کی غلطی مت کرنا۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ خود کو کنٹرول کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یو نو بیٹر، تم سے بس ایک رات کی خواہش۔ زلیش کو اپنا آپ کسی کھائی میں گرتا محسوس ہوا۔ کیا بکواس کر رہے ہو ذلیل انسان؟ دوسری طرف سے وہ ہنسنے لگا۔ ویری نائس، باتیں سنانا بھی آ گئی ہیں تمہیں۔ ویسے زلیش بہت خوبصورت ہو تم، بٹ افسوس اس رات میرے ہاتھ سے نکل گئی، تب سے ڈھونڈ رہا تھا تمہیں، اب مل ہی گئی ہو تو اس ایک رات کا قرض بھی اتار دو۔ شٹ اپ۔ اس نے کال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل سائڈ پر پھینک دیا۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ چکرا کے گر گئی
ऑफिस से आके शामी से ढूंढता हुआ रूम में आया तो उससे जलीश ज़मीन पर पड़ी बेहोश मिली। वो दौड़कर इसके पास आया। जलीश जलीश मेरी जान क्या हो गया? इसे लेके वो बेड पे लटाया। इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। इसे परेशानी से देखता शामी डॉक्टर का नंबर मिलने लगा। डॉक्टर को बुला के अब वो जलीश के पास ही बैठा इसे तशवीश से देख रहा था। चेकअप के बाद डॉक्टर ने शामिर को बाप बनने की खुशखबरी दी। मुबारक हो माँ, बाप बनने वाले हो तुम दोनों। शामिर ने हैरत से डॉक्टर को देखा, फिर बहुत प्यार से जलीश को देने लगा जो होश में आ चुकी थी और अब शामिर की नज़रों से खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। शर्मीन भी मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर को लेके शर्मीन कमरे से बाहर आ गई तो शामिर ने वालवाना अंदाज में जलीश का माथा चूमा, फिर इसकी आंखों में मोहब्बत भरी नज़रों से देखने लगा। थैंक यू जलीश। जलीश मुस्कुरा पड़ी। ऐसे नहीं देखो शामिर, तो कैसे देखो मेरी जान? शामिर इसे मोहब्बत पाश नज़रों से देख रहा था। वो चेहरे ही मोड़ मोड़ गई शर्मा के। जलीश आई लव यू सो मच इसके कान के पास सरगोशी में बोलता वो जलीश की दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। जब भी मोबाइल की बीप बजती वो खौफजदा नज़रों से मोबाइल को देखने लगती जैसे अभी जवाशा इससे निकल के आ जाएगा इसके सामने। शामिर की परेशानी का सोच कर वो इसे बता भी नहीं रही थी। मोबाइल की बीप बजी। इसने डरते डरते रिसीव की तो जवार शाह की आवाज़ टकराई इसके कान से। हेलो जाने मन। इसने डर के बंद कर दिया। फिर बेल बजी। इसने खुद को तसल्ली दी डरना नहीं है और बिना देखे फ़ोन कान से लगाया। क्या मसला है तुम्हें जवार शाह? क्यों पीछा नहीं छोड़ते मेरा? दूर रहो मुझसे, आई समझ? जवार शाह तुम्हें कॉल पे तंग करता है जलीश? शामिर की आवाज़ पे जलीश का दिल धक से रह गया। शामिर जो पूछा इसका जवाब दो। इसकी आवाज़ सख्त आवाज़ आई। हाँ। शामिर ने कॉल बंद कर दी। जलीश मोबाइल को देखने लगी। इसे डर लग रहा था कि अब क्या होने वाला है। इसे नई परेशानी ने घेर लिया। अब क्या होगा? शामिर क्या करने वाला है? वो घबरा रही थी। अब क्या होगा? जवार शाह के ऑफिस का दरवाज़ा खुलता शामिर गुस्से से अंदर आए। पीछे इसके इसके सेक्रेटरी भी थी। यू ब्लडी बास्टर्ड। जवार शाह अपनी जगह से उठा और अपनी सेक्रेटरी को जाने का इशारा किया। वो चली गई। शामिर ने इसका गिरबान पकड़ लिया। हु दी हेल यू आर जो मेरी बीवी को कॉल्स करके परेशान करो? इसके मुंह पर घुसा मार के वो खूनख्वार आंखों से इसे घूर रहा था। शामिर मेरी एक और घुंसा मारा इसके मुंह पे। वो मेरी बीवी है, मेरी बीवी। क्या सोच के तुमने इसे कॉल करते हो? जलील इंसान हो, कितनी अपनी जरालत दिखानी है तुमने, नीच इंसान। जवार शाह को धक्का दे के वो इस पे झुका था। आइंदा ये घटिया हरकत की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो इसे तनबीह करके कमरे से निकल गया। जवार शाह अपने मुंह को छूने लगा। इसका होंठ फट गया था और खून बह रहा था। इसकी नज़र दरवाजे पर थी जिधर से अभी अभी शामिर गया था। ये अच्छा नहीं किया तुमने जलील। शामिर को बता के सब बहुत बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ। क्यों डरती हो आप इससे जलीश? क्यों मुझे बताया क्यों नहीं? वो आपको कॉल करता है क्यों? वो इस पर गुस्सा हो रहा था। जलीश आंसू भरी आंखों से इसे देख रही थी। आज पहली बार वो जलीश पर गुस्सा हो रहा था। शामिर का दिल पिघल गया। यार इसके सामने बैठ गया। रोया नहीं करो मुझसे, आपके ये आंसू नहीं देखे जाते। वो बेचारगी से बोला। जलीश अभी तक इसे आंसू भरी आंखों से देखी जा रही थी। शामिर ने बासाख्ता इसे अपनी बाहों में भर लिया। आई एम सॉरी जलीश। वो खामोश आंसू बहा रही थी। शामी ने इसका चेहरा हाथों में भर लिया। बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे जलीश, मुझे बता दिया होता मैं किस लिए हूँ मेरी जान। इसका माथा चूम के उसके आंसू साफ करने लगा। अब नहीं रोना प्लीज़। मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? वो बहुत जालिम है, वो मुझे मार डालेगा। अरे नहीं कर सकता वो कुछ। शामी ने इसे तसल्ली दी लेकिन जलीश का दिल जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। अच्छा नहीं किया शामिर को सब बता के जलीश बहुत बुरा किया तुमने, खुद के साथ भी और इसके साथ भी। जवार शाह की धार सुनकर फ़ोन की दूसरी तरफ जलीश का दिल कांप गया। अब देखना मैं क्या करता हूँ। वो वक्त दूर नहीं जब तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओगी, पनाह मांगोगी मुझसे जलीश, पनाह, और मैं तुम्हें नोच लूँगा। ये कहकर जवार शाह ने फ़ोन बंद कर दिया। जलीश खौफजदा आंखों से सामने दीवार को देख रही थी। अब क्या होने वाला है, क्या करने वाला है जवार शाह इसके साथ? इसका दिल सूखे पत्ते की तरह लर्ज रहा था। शामिर को भी नहीं बता सकती वरना वो गुस्से में कुछ कर बैठे। जवार शाह का खौफ और इसका डर फिर से इसके दिल में जगह बनाने लगा। अब क्या होगा इसे नहीं पता था। शामिर अपने किसी काम से इस्लामाबाद जा रहा था। जलीश का दिल कांपे जा रहा था। वो किसी तरह शामिर को रोक ले लेकिन वो इसे परेशान ही कर सकती थी। वो खामोशी से इसका बैग पैक कर रही थी। शामिर ने इसे पीछे से आके बाहों में ले लिया। क्या हुआ मेरी जान, चुप चुप क्यों हो? जलीश एकदम चुकी थी, फिर संभल के बोली। नहीं तो। इसके गाल चूम के इसका रुख अपनी तरफ मोड़ दिया। अच्छा मेरी जान, मेरे आने तक अपना और मेरी इस अमानत का ख्याल रखना। वो मुस्कुरा पड़ी। जल्दी आना शामिर प्लीज़। वो जल्दी आने पे क्या मिलेगा मुझे? वो शरारती हुआ तो जलीश से घूरने लगी। निकलो अब लेट हो रहे हो। शामी ने हंस के इसकी पेशानी पर लब रख दिया, फिर इससे अलग होकर इस पे अलविदाई नज़र डाली। जलीश को लगा रहा था कि जैसे इसका दिल कोई
अपनी मुट्ठी में दबोच रहा। इसे इल्म नहीं था कि वो इतनी खाइफ है। जवार शाह से। वो शामिर की बीवी थी, वो माँ बन रही थी। एक नन्हा वजूद इसके अंदर जन्म ले रहा था, इसे मजबूत बनना था, लेकिन वो जो एक खौफ जवार शाह इसके अंदर डाल चुका था, जलीश इस खौफ से छुटकारा नहीं पा रही थी। वो खौफ इससे अलग हो ही नहीं रहा था। शर्मीन और आहाना एक तकरीब में गई हुई थी, जलीश का दिल नहीं था, सो वो नहीं गई। अभी वो बैठी टीवी देख रही थी जब बेल की आवाज़ पे वो चौंकी थी। जल्दी आ गई और सोचते हुए उठी और दरवाज़ा खोलने चलेगी। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने वाला शख्स इसके मुंह पर मार रखे से बेहोश कर चुका था। वो बेखुदी से इसकी बाहों में झूल गई। आंखें खोली तो खुद को इसी कमरे और बेड पर पड़े पाया जिधर जवार शाह इसे अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता था। वो यकदम से उठ के बैठ गई। हेलो जलीश जानम। जवार शाह की आवाज़ पर वो चौंक के दाएं तरफ देखने लगी। जवार शाह सोफे पर इत्मीनान से बैठा से देख रहा था। क्यों लाए हो मुझे तुम यहाँ? वो गुस्से से बोली। ना ना मेरी जान। इतना गुस्सा। वो उठ के इसके करीब आने लगा। वो अपनी जगह से खड़ी हुई। वो इसके करीब आके इसके चेहरे को छूने लगा। वो 2 कदम पीछे हटी। दूर रहो मुझसे। वो हंसा था। वो क्या है ना जलीश, मैं इतनी आसानी से अपनी चीज़ को किसी और के होने नहीं देता। फिर इसका बाजू दबोचा। अब सीधी तरह से मेरी बाहों में आके मुझे खुश कर दो। उफ तुम्हारा ये संदली बदम। वो तरसी निगाहों से जलीश को देख रहा था। दूर रहो मुझसे, मेरे करीब नहीं आना। इसे खुद को बचाना था, इसे नन्ही जान को बचाना था जो अभी इस दुनिया में नहीं आया था। इसे मजबूत बनना ही था। क्या हो जाएगा? बस एक एक रात की तो बात है। शामिर को भी पता नहीं चलेगा और मेरी प्यास भी बुझ जाएगी। फिर भी कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। जवार शाह ने कहते साथ ही इसका दुपट्टा खींच लिया। जलीश की आंखें खुली रह गई। इसे अपने बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आया। इसे रोना आ गया। तब रोना आ गया था। वो अब इल्तिजाइया नज़रों से जवार शाह को देखने लगी। प्लीज़ जवार, प्लीज़ जाने दो मुझे, मत करो ऐसा मेरे साथ। और वो जवार के बाजुओं में फड़फड़ा रही थी। वो इसे सुन ही नहीं रहा था। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे हौसला दे, मेरी मदद फरमा मेरे मालिक। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे खुद को इससे बचाए। जलीश ने इसे धिक्का दिया। मैं मर जाऊंगी, मार डालूंगी खुद को, लेकिन शामिर की अमानत में खयानत नहीं होने दूंगी। ओ कम ऑन। बालकोनी का दरवाज़ा खुला हुआ था। जलीश बिजली की तेज़ी से बालकोनी में गई और जावेयार शाह भी इसके पीछे आया। दूर हटो मुझसे जावेयार। इसे खींचने के लिए इसने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, जलीश ने बालकोनी से खुद को गिरा दिया। हर तरफ खून बिखर गया। नीचे खड़े मुलाजिम हैरत से देख रहे थे। वो खून में लथपथ थी। जावेयार शाह हैरत से इसके खून से लथपथ जिस्म को देखता रहा। फिर ऊंची आवाज़ में बोला, ले जाओ इसे किसी हॉस्पिटल के सामने फेंका। वो ये कहता कमरे में चला गया और मुलाजिम इसके हुक्म की तकमील की आगे बढ़ गए। इसे एक हॉस्पिटल के सामने फेंक के वो लोग गाड़ी आगे बढ़ा ले गए। वो खून में लथपथ बेहोश पड़ी थी। जब एक नर्स के गुजरते हुए इस पे नजर पड़ी, खून से लथपथ चेहरे को देख के वो चूंगी गई। जलीश वो जल्दी से दूसरे नर्सिस को बुलाने लगी। इसे इमरजेंसी में ले जाने लगे। डॉक्टर जूबिया को बुलाओ जल्दी से, डॉक्टर आना की भाभी है ये, जल्दी करो। सब हफादफी में इधर उधर भाग रहे थे। आना परेशान से बैठी रोती हुई शर्मीन को चुप करवा रही थी। जब से दोनों आई थी, जलीश को घर में ना पाकर शर्मीन के तो हाथ पांव फूल गए। आना के मोबाइल पे कॉल आई। हेलो व्हाट। दूसरी तरफ से सब सुनने के बाद इसकी चीख ही निकल गई। क्या हुआ आना, बोलो। मम्मा भाभी हॉस्पिटल में है और इनकी हालत बहुत ख़राब है। शर्मीन रोने लग गई। ये क्या हो गया? वो दोनों हॉस्पिटल जाने के लिए रवाना हो गई। हॉस्पिटल पहुंच के आना इमरजेंसी वार्ड में गई तो जलीश को खून आलूदा जिस्म के साथ देख के वो सकते में आ गई। जलीश डॉक्टर सलार इसे देखने लग गए। डॉक्टर आना, आर यू ओके? प्लीज़ मेरी भाभी को बचा लें, सेव हर प्लीज़। वो दीवार का सहारा लिए फटी आंखों से जलीश को देखने लगी। इससे हिला तक नहीं जा रहा था। वो कैसे ऑपरेशन करती इसका? वो तो इसके भाई की अमानत थी, इसके पास से क्या जवाब देगी? इसे क्या 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 हुआ होगा जलीश के साथ? सोच कर इसके आंसू निकल गए थे। जलीश का काफ़ी खून बह चुका था। और सॉरी आना, इसका मिसकैरेज हो गया है। आना की आंखों में आंसू आ गए थे। कितने खुश थे इसके भाई भाभी और वो खुद। जलीश कैसी है? वो डॉक्टर जुबिया को देख रही थी। इसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है आना, इसका खून काफ़ी बह चुका है, बस दुआ करो बस। वो वैसे वो गिरी कैसे? आना को समझ नहीं आया कि क्या बताए, इसे कुछ मालूम नहीं था। मामा जलीश किधर है? कॉल रिसीव नहीं कर रही मेरा। शर्मीन से फ़ोन पे पूछ रहा था। शर्मीन सिसक पड़ी। मामा क्या हुआ? जलीश तो ठीक है ना? शर्मीन ने रोने में तेज़ी आ गई। शामिर को परेशानी होने लगी। बेटा हम तुम्हारी इमानत की हिफाजत ना कर सके क्या मतलब? शामिर ने दहल के पूछा। जलीश हॉस्पिटल में है और शामिर फ़ोन कट चुका था। वो पहली फ़्लाइट से ही कराची पहुंचा और अभी हॉस्पिटल में आना की ज़ुबानी सब सुन रहा था। इसका बच्चा नहीं रहा था। जलीश की हालत बहुत ख़राब थी, इसके बचने के चांसेस कम थे। शामिर की आंखों में खून उतर आया। वो तेज़ी से हॉस्पिटल से बाहर निकला। अजलान शाह अपने बेटे और जवार शाह के साथ चाय पी रहे थे जब शामिर गुस्से से फंकारता हुआ अंदर आया।
जवार शाह दोनों अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। शामिर ने जवार शाह का गला दबोच लिया। क्या किया तुमने मेरी बीवी के साथ? अजलान शाह इन दोनों को देखने लगे। क्या बात है जवार शाह? क्या जबकि शामिर की आंखों में खून उतर आया था। जलील इंसान, कहा था ना, मैं कहा था अपनी जलालत समेत दूर रहो। मेरी बीवी से प्रेग्नेंट थी वो इसका गला दबोच रहा था। जब अजलान शाह अपने बेटे को देखने लगे, जवार क्या किया है तुमने? जवार की आंखें उबल पड़ी थी। ये झूठ बोल रहा है डैड, इसके मुंह से लफ्ज़ ही नहीं निकल रहे थे। मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो इस लातों से मारने लगा। अब इसकी जनून इस पे जनून सवार था। क्या किया जुल्म सहे जलीश ने तुम्हारी वजह से। जलील इंसान, इसकी इज्जत पे हाथ डाला। अजलान शाह बेयकीनी से अपने बेटे को देखा। इससे खौफ की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया तुमने। अब जब वो मेरी बीवी है तो इसे मौत के घाट उतार दिया। जवार, तुमने मेरी बच्ची के साथ ये सब किया। जलान हैरत से अपने बेटे को मार खाता देख रहे थे। शामिर इनकी तरफ मुड़ा। पूछिए इससे कि इसने किस किस तरह अजियत दिया जलीश को। इसके चेहरे जिस्म पे निशान, जख्म के निशान थे। इसका हाथ जलाया हुआ था। हमारे बच्चे का कातिल है ये। मेरी बीवी हॉस्पिटल में मौत और ज़िंदगी की जंग लड़ रही है और ये इतने सुकून से बैठा हुआ है। तुम्हारा फैसला अब कानून करेगा। वैसे खींच कर उठा के बाहर की जानिब जाने का सोच रहा था जब वो फुर्ती की तेज़ी से उठा और शामिर के मुंह पर गुस्सा मारकर वो बाहर की तरफ लपका। जब तक शामिर संभलता वो गाड़ी में बैठ चुका था। शामिर के पहुंचते ही गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ी। शामिर भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और ड्राइव वे पे डाल दी कि वो जवार शाह की गाड़ी का पीछा करने लगा। जवार शाह ने स्पीड बढ़ा दी, लेकिन मोड़ते हुए वो बैलेंस ना रख पाया और इसकी गाड़ी ट्रक से टकराकर दूर जा गिरी। शामिर गाड़ी रोक के इसकी तरफ देखने लगा। जवार शाह का मुलाजिम अब्दल, जिसने इस रात जलीश की मदद की थी इसे भगाने में, इसने सब अजनान शाह को बताया। कैसे जवार शाह रोज़ इसे बंगले पर ले जाके टॉर्चर करता, इसे डराता धमकाता, इसे मारता, हॉस्पिटल के सामने कैसे पहरा लगवाया था और कैसे इस रात तो वो इसकी इज्जत से खेलना चाहता था और वो वहाँ से भागी थी और कैसे इस रात वो बालकोनी से नीचे गिरी। अजनान शाह बेयकीनी से सब सुन रहे थे। तुमने पहले क्यों नहीं बताया ये सब मुझे अब्दुल? कुछ सहा है इस मासूम बच्ची ने? इस जानवर की वजह से इन्हें बहुत दुख हो रहा था तो वो सर पकड़ कर रह गए। जब मोबाइल की बीप बजी उन्होंने कान से लगाया तो इन्हें जवार शाह के एक्सीडेंट की खबर दी। वो कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले तो बेतासुर लहजा था, मेरा कोई बेटा नहीं है। वो मोबाइल बंद कर दिया। जवार शाह की खून में लथपथ बॉडी किसी लावारिस की तरह हॉस्पिटल में इधर उधर चकरा रही थी। इसे इमरजेंसी वार्ड ले जाया गया। इसकी हालत बहुत बुरी थी। सर पर बहुत ज़्यादा चोटें आई थी। डॉक्टर से इसका प्रेशर करने लगे, लेकिन अजलान एक बार भी हॉस्पिटल नहीं गए। अपने बेटे का सुन के भी वो जाते भी कैसे? दुख ने इन्हें आन घेरा था। एक मासूम बच्ची जिसकी सरपरस्ती उन्होंने ली थी। इनका अपना बेटा इस लड़की की इज्जत और दुश्मन, जान का दुश्मन बन गया था। जलीश अभी तक बेहोश थी। इसका जिस्म मुख्तलिफ मशीनों में जकड़ा हुआ था। इसकी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचा था। शामिर बेंच पर सर दिए बैठा। इसे एक एक करके जलीश की बातें याद आ रही थी। वो मुझे मार डालेगा। शामिर, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ जल्दी आ जाना, मुझे अकेला छोड़कर ना जाया करो प्लीज़। शामिर ज़ोर से चीखा था। शर्मीन दहल के इसके पास आई। सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से जलीश वहाँ है। वो डर और खौफ की ज़िंदगी गुजार रही थी और मैं इसे टालता रहा कि कुछ नहीं है। वो खुद को मलामत कर रहा था। इसे बार बार जलीश का खौफ, बार बार इसके लिए अल्फाज तकलीफ दे रहे थे। वो अपनी जगह से उठा और तेज़ी से चलता हुआ कॉरिडोर से गुजर कर दूसरे कॉरिडोर में गया और जवार शाह के रूम में दाखिल हुआ। करीब जाके इसने जवार शाह का गिरबान पकड़ लिया। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें गलीज इंसान, मार दिया तुमने मेरी जलीश को, जान ले लूँगा तुम्हारी, घुट घुट के मार डालूंगा। सब इसे जवार शाह से अलग करने लगे। डाटा लियान इसे लेकर बाहर आ गया। जवार शाह का जिस्म बेजान पड़ चुका था। इसमें कोई हरकत नहीं है। दिमाग पे चोट लगने की वजह से इसकी ये हालत हुई है। वो ठीक से हिल नहीं सकता। इससे बड़ी सज़ा और क्या हो सकती है इसके लिए? होश करो तुम, वो इसका दोस्त भी था। कैसे होश करूं अलियान? मेरी जलीश मौत से लड़ रही है, कैसे होश करूं? वो बेचारगी से बोला था। अल्लाह बेहतर करेगा शामिर, हौसला रख। वो नडाल सा वहीं बेंच पर बैठ के बस एक बार वो ठीक हो जाए, मैं इसे खुद से कभी अलग नहीं करूंगा, बस एक बार। वो रोने लगा। अलियान से दिलासा देने लगा। वो देर तक वहीं बैठा अल्लाह से जलीश की ज़िंदगी की दुआएं करता रहा। मत मारो मुझे प्लीज़, प्लीज़ जवार, मुझे दर्द हो रहा है। जलीश रो रही थी, बिलक बल्कि रो रही थी और जवार शाह इसके रोने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। बेल्ट से इसको मार मार के वो सोफे पर गिरा के बैठ गया और जलीश का तड़पना देखता रहा। और अब इसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो ना हिल पा रहा था, ना बात कर सकता था। बेजान वजूद के साथ वो बस आवाज़ें निकाल सकता था जिसे कोई समझ नहीं सकता था। मकाफ़ात अमल यही होता है शायद। इसे हर
वो लम्हा अब याद आ रहा था, जिस जिस लम्हे ने जलीश को ज़ियत दी थी, जिस जिस लम्हे इसकी इज्जत पे हाथ डालना चाहता, जिस जिस लम्हे से रुलाया था। कामरान इसके पास आया। इसकी आंखों का खौफ देख के वो घबरा गया। जवार ठीक हो? जवाब 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 में वो जवाब में वो अजीब आवाज़ें निकालने लगा, जिसे समझने से कामरान कासिर था। आखिर वो जब अपनी बात समझा नहीं पाया तो सर पटक पटक के रोने लगा। कामरान इसे रोकने लगा, लेकिन वो नहीं रुक रहा था। वो खुद को हरकत नहीं दे पा रहा था। जावेयार शाह का गुरूर जैसे ही एक लम्हे खाक में मिल गया था। वो जो यही सोचता, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक यतीम लड़की को इज़्ज़त देते इसने कभी अपने खुदा को याद नहीं किया। और आज जलीश अब खतरे से बाहर थी, इससे होश आ चुका था। शामिर इसके पास बैठा इसे देख रहा था, जबकि जलीश इससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। जलीश, मेरी जान इधर देखो ना। शामिर प्यासे से बोल रहा था, लेकिन वो नजरें चुरा रही थी। क्यों ऐसा कर रही हो मेरी जान, क्यों? मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ शामिर। अब मैं हमारे बच्चे की हिफाजत ना कर पाई, खो दिया मैंने इसे। वो फूट फूट कर रोने लगी। वो तो तुम्हारी इमानत में खयानत करना चाह रहा था, मैं कैसे ऐसा करने देती। ऊपर से गिरा दिया मैंने खुद को और हमारा बच्चा। वो रोए जा रही थी, इसकी हालत बिगड़ने लगी, इसकी सांसें रुकने लगी। शामिर से तसल्ली देने लगा। आई लव यू जलीश। इस नर्स ने आगे बढ़ के इसे इंजेक्शन लगा दिया। इसका ऑक्सीजन मास्क ठीक किया। वो नुनकी में जाने लगी। शामिर आंसू भरी आंखों से इसे देखने लगा। वो आस्ता आस्ता जलीश की आंखें बंद हो गई। अदनान शाह ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो बेटे की हालत देखकर तड़प गए। जवार शाह की भी आंखें भीग गईं इन्हें देख के। जब से वो हॉस्पिटल में था, कामरान के सिवा कोई भी इसके पास नहीं आया था। आज अपने बाप को देख के इसकी आंखें भीग गई। वो इन्हें बुलाना चाहता, लेकिन इसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन अचानक अदनान शाह को जलीश पे कोई जुल्म और सितम याद आए। वो आगे बढ़े और जवार शाह को देखने लगे। इंसान जब खुद को ताकतवर समझ के जुल्म करता है तो वो खुद को खुदा समझने लगता है। इसे इस बात का होश तक नहीं रहता कि एक के ऊपर एक और ज़ात भी है जो इसे देख रही है। अफसोस जवार, अफसोस इस मासूम बच्ची पे जुल्म करते हुए तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो इंसान है। इतने मगरूर हो गए थे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए मुझे शर्म आती है। जवार शाह रोने लगा। इसके मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकलने लगी। अजलान शाह इसे अफसोस से देख रहे थे। काश तुम मेरे बेटे ना होते जवार, काश। ये कहकर वो कमरे से निकल गए। वो मजीद अपने बेटे की इस हालत में नहीं देख सकते थे। उन्होंने मशहूर और काबिल डॉक्टर से बात की। जवार शाह के हवाले से वो बेहतर तरीके से जवार शाह का इलाज करवाना चाहते थे। जो जो भी था तो अजलान शाह का बेटा ही ने दुख ने घेर लिया। और जवार शाह को इस हालत में देख के जलीश के कमरे में आके वो देर तक इसे देखते रहे थे। डॉक्टर ने जलीश को ज़्यादा हरकत से मना किया हुआ था। जलीश ने आहट पर आंखें खोली तो सामने अजलान शाह को देखकर हैरान हुई। अंकल, अजलान शाह के बड़े, मेरी बच्ची क्यों छुपाया मुझसे? क्यों नहीं बताया कि जवार तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करता था? मैंने तुम्हें हॉस्टल भेज दिया था कि जवार शाह तुम्हें तंग ना करे, और मुझे पता भी नहीं चल सका कि जवार शाह क्या कुछ कर रहा तुम्हारे साथ। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वो रोने लगे। जलीश को रोना आ गया। प्लीज़ अंकल ऐसे नहीं करें, प्लीज़। तो क्या करूँ जवार की वजह से तुम इस हाल में पहुंची हो। मैंने ये वादा तो नहीं किया था अपने दोस्त से। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो। वो शर्मिंदगी से कह रहे थे। जलीश रोए जा रही थी। क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों वो एक बार तो बता देती। अजलान शाह को अफसोस हो रहा था कि वो क्यों यूँ अंधे और बहरे रहे। मैं कैसे बताती। आप जवार ने कहा था कि अगर आपको पता चला तो वो मुझ पे एसिड डाल देगा। अजलान शाह तड़प ही गए अपने बेटे की सफाकी का सुन के। कैसे वो सफाक हो सकता है? उन्होंने अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। एक यतीम बच्ची पर इनका सफाक बेटा क्या क्या जुल्म ढा चुका था। वो सोच के ही कांप उठे थे। तुम ठीक हो जाओ इंशाल्लाह। मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। वो देर तक आंसू भरी आंखों से इसके पास से बैठे बातें करते रहे। वो खौफज़दा आंखें आंसू से भरी। वो दो आंखें जिन्हें बहने की इजाज़त नहीं देता था। वो इसकी चीखें, इसकी मिन्नतें अब इससे पल पल याद आती और इसे बेचैन कर देती। लेकिन वो हिल नहीं सकता था। इसका वजूद तो सालन था, लेकिन इसमें हरकत नहीं थी। वो कुछ कहने की कोशिश करता, लेकिन इसकी ज़बान इसका साथ ना देती। नतीजे में इसके मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकलती और फिर वो रोने लग जाता। जनान शाह की मदद से मुल्क के बेहतरीन डॉक्टर से इसका इलाज हो रहा था। जवार की हालत काबिल रहम हो गई थी। इन्हें तरस आता था इस पे। जलीश को अब घर शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन इसे बहुत एहतियात की ज़रूरत थी। अब 1 महीने बाद
वो अपने कमरे में आई थी। इसे सुकून का एहसास हो रहा था। बहुत खुश है मेरी बेगम आज, शामिर ने इसे आंखों के खसार में लिए बोला तो जलीश हंसने लगी। सुकून मिल रहा है अपने कमरे में आके, मुझे भी सुकून चाहिए अब, शामिर ने आंखों के खसार में लिए कहने लगा। जलीश ब्लश कर गई। चुप रहो तुम, लो जी आ गई उस्ताद गिरी स्टार्ट। जलीश मुंह बना के से देखने लगी। इतनी बुरी लगती हूँ तुम्हें? हाँ बहुत, शामिर शरारत से बोला तो जलीश से घूरने लगी। मैं हूँ ही बुरी, वो मुंह वसूल कर बैठ गई। शामिर को हंसी आई और अचानक इसके गाल पे लब रख दिए अपने। जलीश अचानक से दूर हुई। नॉट फेयर, मैं नाराज़ हूँ तो मैं भी मना रहा हूँ यार। शामिर जेलब मुस्कुराता से देख रहा था। ऐसे मत देखा करो मुझे, मैं कंफ्यूज होने लगती हूँ। शामिर का कहका बेसाख्ता था। जो हुक्म आपका, जलीश अतरा के इससे देखने लगी। 1 साल बाद जलीश ने दोबारा से अपनी जॉब इसी कॉलेज में स्टार्ट कर दिया। अब सब शामिर की कोशिशों से हुआ था। इसका खौफ डर सब खत्म हो चुका था। ध्यान रखना बस मेरी प्यारी बेगम, मेरे जैसा कोई स्टूडेंट ना टकरा जाए अब अगेन, शामिर ने एक दिन शरारत से कहा था तो वो रूठ गई थी। बदतमीज, शामिर बेसाख्ता हंसने लगा। इसकी क्लासेस ऑफ हुई तो वो घर जाने के लिए कॉलेज से बाहर आई। वो चलती हुई अपनी गाड़ी के पास जा रही थी जब इसके कानों से जानी पहचानी आवाज़ टकराई। जलीश वो आस्था से मुड़ी तो जवान शाह इसके सामने खड़ा था। इसके लबों पर नरम सी मुस्कुराहट थी। कैसी हो जलीश? जलीश बिना जवाब दिए मुड़ के अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी। बात कर सकते कुछ देर प्लीज़? जलीश मुड़ के से देखने लगी। प्लीज़ अब क्या प्लान बन रहा है तुम्हारे माइंड में जवार? जलीश बिना डरे बोली तो वह मुस्कुराया। कोई प्लान नहीं है जलीश, कुछ देर बात करना चाहता हूँ प्लीज़ बोलो। उसे देखने लगी। वो इधर उधर देखने लगा। तो घर पे प्लीज़? कौन से घर? वो उसे देख रही थी। अपने घर, आई मीन यही हमारे घर पे। मैं कहीं नहीं जा रही, जो कहना है यही कहो, वो दो टोक अंदाज में बोली। वो सर झुका के जलीश इसके झुके सर को देखने लगी। वो नज़र उठा के बोला प्लीज़ बात लंबी है, यहाँ नहीं हो सकती। ट्रस्ट मी, प्लीज़ ट्रस्ट मी, आई विल नेवर नेवर एवर हर्ट यू, मैं चेंज हो गया हूँ प्लीज़ बाय। वो मुड़ी ही थी जब जवार शाह की आवाज़ ने इसके कदम रोक लिए। मैं मोहब्बत कर बैठा था तुमसे। जलीश मुड़के से देखने लगी। क्या कुछ था इन आंखों में? वो नज़रें चुरा गया। जलीश गाड़ी में बैठ के गाड़ी आगे बढ़ा ले गई। जवार शाह वही खड़ा रहा काफ़ी देर तक। बात हुई तुम्हारी जलीश से? अजनान शाह डिनर पे अपने बेटे जवार शाह से पूछ रहे थे। उन्होंने बहुत इलाज करवाया था जवार का। 1 साल की मेहनत और इलाज के बाद जवार शाह इस काबिल हुआ था। अजलान शाह ने इससे माफ़ कर दिया था, लेकिन अब वो जरीश से भी माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन वो मौका ही नहीं देती थी। नो डैड, वो मेरी बात नहीं सुन रही। मैंने इससे कहा भी कि मैं चेंज हो चुका हूँ, घर पे बात करते हैं, लेकिन वो लपकारने लगा। अजलान शाह कुछ सोचने लगे। दुख भी तो बहुत मिले हैं इससे, तुमसे किस बेस पे ट्रस्ट करे वो अब तुम पे? जी डैड, आप ही कुछ करें अब प्लीज़। मैं जी आप कह दें जरीश को कि आपकी तबीयत ख़राब है, वो एक दफ़ा आपसे मिलने आ जाए। अजलान शाह इसे देखने लगे तो जवार जल्दी से बोला प्लीज़ पापा प्लीज़। ठीक है। वो मोबाइल निकाल कर जलीश का नंबर बनाने लगे। दूसरी बेल पे जलीश की आवाज़ इसके कानों से टकराई। बेटा मैं हूँ अजलान शाह। अरे अंकल आप, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ये तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, सोचा तुम्हें कल घर पे बुला लूँ, कुछ देर के लिए आ जाओ, बातें करेंगे कुछ देर। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। जलीश बेटा जी जी अंकल ठीक है, मैं आ जाऊँगी, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद करके वो जवार शाह को देखने लगे जो मुस्कुरा रहा था। बंगले के सामने उतर के इसने इसके कदम लड़खड़ाए थे, लेकिन फिर वो संभल के आगे बढ़ी। इसमें एतमाद आ चुका था। अब इसमें कोई डर खौफ नहीं था। अब वो एक मजबूत औरत थी। अब इसे शाह मीर का एतमाद हासिल था। मुलाजिम इसे लिए ड्राइंग रूम में ले आया। मैं बड़े साहब को बुला लाता हूँ। वो कमरे से निकल गया। जलीश कमरे का जायजा ले रही थी जब जवार शाह मुस्कुराता न दाखिल हुआ। एक पल को जलीश का दिल दहल गया, लेकिन अगले लम्हे वो खुद को संभाल कर अपनी जगह से खड़ी होगी। अंकल कहाँ हैं? अरे आ रहे हैं। वो इसके पास आया। जलीश का दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था, लेकिन वो खुद को बहादुर दिखा रही थी। बैठो ना प्लीज़, वो बैठते हुए बोला तो वो भी बैठ गई। इसे देखने से कतरा रही थी और जवार शाह की नज़रें इससे नहीं हट रही थी। अगर कोई आपसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगे तो क्या करना चाहिए? जलीश ने एक नज़र से देखा। वो खुद ही कहने लगा माफ़ कर देना चाहिए, है ना? जलीश मुंह मोड़ गई। मैं मोहब्बत करने लगा था तुमसे जलीश। जलीश गुस्से से खड़ी हो गई। ये क्या बकवास है जवार शाह? अब क्या प्लान बन रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्यों मेरी पुरसुकून ज़िंदगी को डिस्टर्ब करने पहुंच जाते हो? वो इस पे चीखी थी और जवार शाह घबरा के सॉरी करने लगा। प्लीज़ जलीश, आई एम सॉरी, प्लीज़ गुस्सा नहीं हो। जलीश इसे हैरत से देख रही थी। प्लीज़ बैठो, प्लीज़ मेरी मेरी बात सुनो प्लीज़। वो इसे हैरत से देखती बैठ गई।
मैं अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ तुमसे ज़लीश। मैंने जो भी किया इन सब के लिए सॉरी। बहुत छोटा पड़ रहा है लेकिन वो सर झुका गया। मैं मोहब्बत करने लगा था तुमसे ज़लीश, लेकिन मुझे मोहब्बत करना नहीं आया। मुझे मज़ा आता तुम्हारी आंखों में खौफ देखकर। मेरा दिल चाहता तुम मुझसे डरो, सिर्फ मुझे सोचो, सिर्फ मेरे पास रहो। मैं जो करूँ जैसा करो, तुम कभी इनकार ना करो, क्योंकि मुझे ना सुनने की आदत नहीं थी। और फिर मोहब्बत जिद बन गई, तुम मेरी जिद बन गई थी ज़लीश। मैं तुम्हें हासिल करना चाहता था बस, और मैं खुद को खुदा ही समझ बैठा। मुझे लगा था वो रुका ज़लीश की आंसू भरी आंखें इस पे जमी थी। तुम्हें बहुत तकलीफ दी है मैंने ज़लीश, तुम पे बहुत जुल्म किए हैं। मुझे खौफ ही नहीं महसूस हुआ, कभी कभी रहम नहीं आया तुम पे। फिर जब एक्सीडेंट के बाद मैं बेड पर पड़ा रहता, मैं हिल नहीं पाता, तब पल पल तुम्हारी याद आई मुझे। तुम्हारे खौफज़दा आंखें, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी चीखें, तुम्हारे दर्द, और फिर इस रात तुम्हारा खुद को ऊपर से नीचे गिरा देना। मैं खुद बुरा कहता, रोता, खुद को मारता। मैं क्यों इतना जालिम बन गया। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ ज़लीश। माफ़ी। ज़लीश की आंखों से आंसू झलक पड़े। तुमने मेरे ऊपर ज़िंदगी तंग कर दी थी ज़वार। मैं मौत की दुआ भी नहीं मांग सकती थी, क्योंकि मुझे लगता ज़वार शाह को पता चला मुझे मार देगा। क्या इन सब के लिए एक माफ़ी का काफ़ी है ज़वार? तो जो भी सज़ा है मुझे वही सज़ा दो ज़लीश। मैं तैयार हूँ हर सज़ा के लिए। तुमने मेरी इज़्ज़त पे हाथ डाला, मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया, मार डाला तुमने इसे। मेरी रूह छलनी छलनी कर दी तुमने। मेरा जिस्म ज़ख्मी, मेरी रूह ज़ख्मी। वो रोने लगी। कोई ऐसा भी करता है? मैंने किया ही क्या था तुम्हारे साथ? तो वो सब किया मेरे साथ। वो सर झुका गया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी ज़वार शाह, कभी नहीं। आइंदा मेरे रास्ते में कभी ना आना। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और चली भी गई, लेकिन ज़वार शाह अपनी जगह से हिल नहीं पाया। वो माफ़ी के लायक था भी नहीं। गाड़ी घर के रास्ते पर ड्राइव करते हुए उसकी सोचों का महवर सिर्फ शामिर था, जिसकी मोहब्बतें हमेशा इसे सरशार करती, जिसकी मोहब्बत ने इसे नई ज़िंदगी बख्शी थी। इसे किसी और से इजहार मोहब्बत की ज़रूरत नहीं थी। एक तरफ ज़वार शाह की मोहब्बत थी, जिसने इसे कहीं का नहीं छोड़ा था, इसे ज़िंदा लाश बना दिया, और दूसरी तरफ शामिर की मोहब्बत, जिसने इसे दोबारा ज़िंदगी बख्शी थी। वो खुश थी शामिर की संगत में, और ज़वार शाह को वो कभी भी माफ़ नहीं कर सकती थी। वो इसके बच्चे का कातिल था, इसकी उम्मीद छीनी थी। खैर, होता है ज़िंदगी में, बुरे दिनों के बाद खूबसूरत दिन भी आते हैं। हर रात की तारीकी के बाद सुबह की रोशनी हमारी मुंतज़िर होती है। तो कैसा लगा आपको ये नावल? बहुत अच्छा नावल था। अगर इसमें कोई पढ़ने में या रीडिंग में कोई मसला हो तो आप वो वीडियो को म्यूट करके भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके लफ्ज़ थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, इस वजह से मैं थोड़ा सा अटकी भी थी इसमें। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसको म्यूट करके आप पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले नावल के साथ बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।